اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور قادیانی حضرات کے لیے ہدایت کی دعا۔ دوستو، ضیاء رسول امینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ ہم آج جو ہے وہ ایک خصوصی پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کینیڈا سے ایس اے چودھری صاحب، جنہوں نے حال ہی میں قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور وہ اس جماعت میں رہتے ہوئے جن تجربات سے گزرے ہیں، جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، جو حقائق وہ جانتے ہیں، اور وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر انہوں نے جماعت کو چھوڑا، تو یہ تمام چیزیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، تب سے لے کے اس کلٹ کی جو اصلیت ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے جو اصل دعویٰ جات تھے، جو اس کی شخصیت تھی، جو اس کا کردار تھا، جو اس کی ٹیچنگز تھیں، جو اس کی رائٹنگز تھیں، جو وہ اپنی ایک پرسنالٹی دنیا کو شو کروا کے گیا تھا، جو اصل اس کی پرسنالٹی تھی، وہ اب بالکل دنیا پر ظاہر ہو چکی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا، سورسز نہیں تھے، تو اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ، آپ کو نالج نہیں ہے، کم نالج رکھتے ہیں آپ اسلامی، تو آپ کے سامنے کوئی بندہ بیان کر دیتا ہے کہ دیکھیں جی، یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ امام مہدی 14ویں صدی میں آئے گا۔ کوئی بندہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ امام مہدی کی نشانی ہوگی کہ چاند گرہن، سورج گرہن لگے گا۔ تو چونکہ آپ کے پاس سورسز نہیں تھے کہ آپ وہ تمام احادیث کی کتب کو آپ لے کے جا کے خود پڑھ سکیں یا ڈھونڈ سکیں، تو بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اس زیادہ ریسرچ میں نہیں پڑھتے تھے یا ان کی اپروچ نہیں ہوتی تھی، وہ ان کی بات مان کے گمراہ ہو جاتے تھے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب آپ کو کوئی بندہ کسی کتاب کا نام لے، چاہے وہ جتنی بھی انٹیک قسم کی کتاب کیوں نہ ہو، آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گی وہ کتاب۔ تو کوئی بندہ اب آپ کو کسی بھی چیز کا حوالہ دے کے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد جو ان کا سلوگن تھا، لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا، جو انہوں نے دنیا میں شو کروایا ہوا تھا، تو اس سلوگن کو لے کے ان کا دنیا میں جو انہوں نے اپنے آپ کو، اپنا فیس جو ظاہر کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم بہت پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم بہت با اخلاق لوگ ہیں، ہمیں کسی سے نفرت نہیں، ہم سب سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ سلوگن دنیا کو دکھا کے، تو چونکہ سوشل میڈیا جب نہیں تھا تو ان کا یہ دھوکہ چل جاتا تھا کہ ہم بڑے با اخلاق، جس سے ملنا انہوں نے بڑے بالکل میٹھے، ایسے روح افزا کے شربت کی طرح میٹھے انہوں نے لگنا، لیکن پیچھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ اصل میں اصلیت کیا ہے۔ وہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ ان کے گردن پہ پاؤں رکھتے ہیں، ان کی اصلیت دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ عقائد تھے مرزا صاحب کے، یہ ان کے کام ہیں، پھر آپ کے سامنے اصل مربی نکلتا ہے، پھر آپ کے سامنے اصل قادیانی آتا ہے۔ پھر آپ اس کی زبان چیک کریں، پھر آپ اس کے اخلاق چیک کر رہے ہیں، پھر اس کی برداشت چیک کریں، پھر اس کا پیار چیک کریں، تو آپ کو بالکل جو ہے وہ 180 ڈگری اپوزٹ وہ نظر آئیں گے، جیسا کہ وہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے آ کے یہ سارا کھیل ان کا بگاڑ دیا۔ اب دیکھیں، مرزا مسرور احمد نے حال ہی میں وہ پابندی لگا دی اپنے سوشل میڈیا کے مربیوں پہ کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ نہیں کرنی، اور کچھ مربیوں کو یہ وارننگ دی ہوئی ہے، اخراج کے نوٹس ان کے جاری ہیں اس وارننگ کے ساتھ کہ اگر نیکسٹ سوشل میڈیا پہ آپ کا کوئی ایسا بیان آیا جس سے جماعت کی بدنامی ہوئی یا مرزا صاحب کی بدنامی ہوئی، تو پھر جناب آپ آٹومیٹیکلی جماعت سے خارج ہیں۔ اور اس قدر وہ شدید جماعت اب یہ ڈپریشن کا شکار ہے کہ اب یہ اوپنلی ڈیبیٹ کرنے پر بھی پابندی لگا رہی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب جب ڈیبیٹ ہوتی ہے، ہمارے مربیان کرام جن کو ہم نے 7 سال جھوٹ سکھایا ہے، ان کے جھوٹ اب چل نہیں سکتے۔ بندہ 2 کلک کرتا ہے انٹرنیٹ پہ تو وہ سارا کچھ مواد سامنے آ جاتا ہے، اب بندہ کیسے جھوٹ بولے وہاں پہ؟ تو جھوٹ تو وہاں چل سکتا ہے جہاں اگلے بندے کے پاس مواد نہ ہو، وہ تصدیق نہ کر سکے۔ تو سوشل میڈیا نے آ کے جو ہے وہ بہت سارا کام بگاڑا ہے قادیانیت کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دھڑا دھڑ لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ابھی کل ہی جو ہے وہ میں نے اس کی ویڈیو لگائی ہے، کراچی کی ایک پوری فیملی، اور کافی وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہیں، اور انہوں نے جناب قادیانیت کو چھوڑا ہے، اور پوری فیملی کے ساتھ انہوں نے قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جو مجاہدین ختم نبوت، علماء کرام، اور جو احباب اس کلٹ سے نکل کے آ رہے ہیں، ان کی کاوش جو ہے وہ بہت قابل ستائش ہے، قابل قدر ہے۔ ان کی کوششوں سے اب لوگ جو ہیں سمجھ رہے ہیں کہ اصلیت کیا تھی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان ہونے والے جو قادیانی دوست ہیں، سابقہ قادیانی جو ہوتے ہیں، ان میں سے میجورٹی آ کر ہمیں ایک ہی بات بتاتی ہے
کہ ہمیں مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت کا علم نہیں تھا، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب یہ کسی کو ورغلاتے ہیں یا ان کی جو نسل در نسل آگے جو نسلیں پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی یہ نہیں بتاتے کہ مرزا صاحب کے ٹوٹل دعویٰ جات کیا ہیں، بس وہ ایک امام مہدی ان کو بتا کے تو باقی کوئی چیز نہیں بتاتے، بالکل مرزا صاحب سے دور رکھتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ یہ دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو ایسے جناب یہ مرزا صاحب کو دور رکھتے ہیں اپنے جو کلٹ میں رہنے والے جو لوگ ہیں، تاکہ مرزا صاحب کی اصلیت نہ جان سکیں۔ بہرحال یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ ہمارے ساتھ جناب ایس اے چودھری صاحب کینیڈا سے تشریف لا چکے ہیں، ادھر موجود ہیں، تو اب ہم جو ہے ان کی طرف بڑھیں گے تاکہ اگلی جو پروگرام ہمارا ہے وہ ایس اے چودھری صاحب ہی لے کر چلیں گے۔ ہمارے کچھ سوالات ہوں گے جو ہم ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے ان کے جوابات طلب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایس اے چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جناب، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس ٹائم کو قبول فرمائے اور آپ نے آمین۔ عزت بخشی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کے مزاج کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، جب سے یہ کلٹ کو چھوڑا ہے پہلے سے بہتر ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی مسکراہٹ ہی بتا رہی ہے ماشاء اللہ کہ آپ اندرونی طور پہ دلی طور پہ خوش ہیں جی، ماشاء اللہ جی۔ چوری صاحب بہت بہت شکریہ، ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آہستہ آہستہ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم نے آپ کے لیے کچھ سوالات جو ہے وہ ترتیب دیے ہوئے ہیں، تو وہ ہم سے پوچھیں، آپ سے پوچھیں گے ہم، اور آپ جو ہے امید ہے ہمیں ان باتوں سے آگاہ کریں گے جو کہ ہم آلریڈی نہیں جانتے یا ہم اس طریقے سے نہیں جانتے جس طریقے سے آپ جانتے ہیں۔ تو ہم باقاعدہ پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں آپ کے ساتھ، سب سے پہلا سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کے لیے جو ہے اناؤنسمنٹ ہے کہ پروگرام کے اختتام پر آپ لوگ اسٹوڈیو میں شامل ہو کے یا کمنٹس میں لکھ کے کوئی بھی سوال اگر چوری صاحب سے کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن پروگرام کے اختتام پر۔ اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ چوری صاحب کا یہ آج کا پروگرام سن سکیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ چوری صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ بنی آپ سالہ سال جو ہے وہ اس قادیانی کلٹ میں رہے، تو آخر کہاں سے آپ اس جماعت سے متنفر ہونا شروع ہوئے، ان کے سسٹم سے متنفر ہوئے یا مرزا صاحب کی تعلیمات سے متنفر ہوئے؟ وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے آپ کو یہ جماعت چھوڑنے پر آمادہ کیا اور ریئلائز کروایا آپ کو کہ یہ ایک کلٹ ہے، یہ ایک جھوٹا مذہب ہے مرزا غلام قادیانی کا گڑا ہوا، اس کا سچے دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں؟ جی چور صاحب۔ جی جزاک اللہ، میں آپ کے سوال کا کوشش کرتا ہوں جواب دینے کا، اور جتنا میں نے سوچا تھا تقریر میں کہ میں یہ جا کے بات کروں گا، جی جی اس کا کافی حصہ تو آپ نے اپنے ابھی جو آپ نے 2-3 منٹ پہلے بات کی ہے اس میں آپ نے بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ جی، تو میں لیکن اپنی ہماری بات بات کا جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہے جو آپ کی بات کا ہے، ہم تو یہ روز ہی کہتے رہتے ہیں، لیکن جو آپ نے آ کے بتانا ہے نا اس کا اثر ان لوگوں نے زیادہ لینا ہے جو ابھی تک اس کلٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے، دعا ہے اللہ کرے کہ بات میں اثر ہو، ان کو سمجھ آئے۔ پہلی بات جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں جو میں بولتا ہوں، جو میں بولوں گا ابھی، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لفظ اس نے بولا ہے۔ جو میرے دل میں ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو بہتر میں سمجھتا ہوں یا میرا خدا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی جہاں تک اس کلٹ کے اندر رہنے کی بات ہے، سب سے پہلے کیونکہ میں نے ریسنٹلی فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ اناؤنس کیا ہے کہ میں اس کلٹ کو چھوڑ گیا ہوں، تو جی اس کے بعد لوگوں کے جو فون کالز آ رہے ہیں، خاص طور پہ احمدیہ کلٹ کے اندر پھنسے ہوئے بیچارے لوگوں کے، بیچارے میں ان معنوں میں کہتا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں ہے،
जैसे आपने पहले बोला था, उनको पता नहीं है ये कल्ट है क्या। वो ऐसे यूं कह लें कि वो भेड़ समझ के एक ऐसे भेड़िए को पाल रहे हैं जो भेड़ की खाल में छुपा हुआ है। जी बिल्कुल। शायद ये शायद बेहतर मिसाल नहीं है। इससे बेहतर ये है कि ये इस्लाम का लबादा ओढ़ के इन्होंने अपना अंदर मकरू धंधा शुरू किया हुआ है जिसका इस्लाम के साथ कोई तल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन एक मैं पैगाम देना चाहता हूं तमाम अहमदिया कल्ट के अंदर फंसे हुए बेचारे लोगों को। मैं अपने घर से शुरू होता हूं। ज़िया रसूल साहब, आई एम सॉरी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी चौधरी साहब, बिल्कुल बेहतरीन आवाज़ आ रही। हाँ, मैं अपने घर से शुरू पहले होता हूँ। मुझे अपने घर के, जब मैं बात करता हूँ तो मेरा टारगेट अपने घर के अफराद नहीं है। मेरा टारगेट अपनी गली में रहने वाले, अपने मोहल्ले में रहने वाले, अपने गांव के, अपने मुल्क के, पूरी दुनिया के अहमदिया कल्ट के लोगों के खिलाफ जब मैं बात करता हूँ, खुदा की कसम मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है। अगर ये लोग ये समझते हैं कि ऐसे चौधरी इसलिए सोशल मीडिया पे बात कर रहा है कि ये इसके दिल में हमारे खिलाफ नफरत है, खुदा की कसम मेरा खुदा जानता नहीं है। मुझे इन लोगों की जो बर्बादी है, मैं बाज का इतना उस पर हंसता हूँ कि बेख्तियार रो पड़ता हूँ। ये दीन नहीं है, ये ना कोई मजहब है, ये ना कोई फिरका है, ये कि फितना है। और बेशक। मैंने इसको क्यों छोड़ा, ये मेरी बातों को अहमदिया कल्ट के लोगों को मैं कहता हूँ, खुदा के लिए ये ऐनक जो आपने अतात की ऐनक और जो तस्सब की ऐनक लगाई हुई है, इसको थोड़ा सा उतार के भी लोगों की बातें सुने। ठीक है? बिल्कुल। इस मजहब की मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि क्यों इसके अंदर लोग फंसे हुए हैं। ये मिर्जा साहब एक नहीं थे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये एक इस तरह का जाली पीर नहीं था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान और उस एरिए में बदकिस्मती से हजारों की तादाद में जो लोग थे वो इस तरह के, हजारों की तादाद में इस तरह के जाली पीर थे। वक्त के साथ साथ उन जाली पीरों के जो ड्रामे थे वो दुनिया के सामने आ गए। वो जो लोगों को जालमाना तरीकों से लड़कियों पे तशद्दुद करते थे, उल्टा लटका देना, जिन नकारे हैं, कई तरह के तमाशे हैं जो हम एक एक करके बयान करेंगे तो ये तो प्रोग्राम काफी लंबा हो जाएगा। सो जब से अवेयरनेस आई तो लोगों ने जब उन जालिम पीरों की करतूतों को देखा तो लोगों ने सोचा इन तमाशों का इस्लाम के साथ कोई तल्लुक नहीं है। पासिंग विद टाइम लोगों ने अपनी जान छुड़ा ली। ठीक है? बिल्कुल। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मिर्जा कादियानी साहब जो तमाशे करते रहे दीन के नाम पे, जो अब ये जो अहमदिया कल्ट के लोग कहेंगे शायद ये नफरत से कहता है, मैंने खुद पढ़ा है, मैंने तहकीक की है, मैं आप लोगों का एक एक्टिव मेंबर था, मैं बहुत मुखलस, जो अहमदी जिनको ये मुखलस कहते हैं उसमें मेरा शुमार था। लेकिन मैंने जब, मुझे भी इतना ही पता था, पहले मैं आपको ये बताऊं, जितना आप लोगों को, जितना अहमदी कल्ट के दूसरे लोगों को पता है मुझे भी बस इतना ही पता था। इनको क्या सही। बताया गया है? इनको ये बताया गया है कि हम में और दूसरे मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि एक मसीह मऊद ने आना था, उसको हमने मान लिया है, दूसरों ने नहीं माना। और सारी की सारी जो मिर्जा कादियानी की जो किताबों के अंदर देखें, किसी भी फिरके का या मजहब के पैरोकारों का वही अकीदा होता है जो बानी मजहब का होता है। अब मिर्जा साहब का जो अकीदा था, जो उसने अपनी किताबों के अंदर लिखा,
یہ احمدیوں کو پتہ نہیں ہے. اگر یہ دنیا کو بتائے، اگر ان کو یہ احمدیہ کلٹ کے جو گدی نشین ہیں، یہ جو مربیان معلمین ہیں، ان کو اگر ان کے اندر رحم تو نہیں ہے، اگر یہ ایمانداری کے ساتھ یہ عقیدہ بتائیں کہ وہ اپنے آپ کو، مرزا صاحب نے نبی بھی کہا ہے کہ میں نبی ہوں، اس نے یہ بھی کہا ہے میں مریم بن گیا، اس نے یہ بھی کہا ہے عیسیٰ میرے پیٹ سے پیدا ہو گیا، اس نے یہ بھی کہا ہے. ضیاء رسول صاحب، میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی، میں ان لوگوں کو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں، میں رانگ نہیں دینا چاہتا. یہاں پہ بالکل. آئی تھنک یہ بٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے. جی جی بٹ صاحب بیٹھے ہیں. بٹ صاحب کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے، ان کا چہرہ دیکھ کے مجھے. بٹ صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، ضیاء رسول صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے، ہم بٹ صاحب موجود ہیں، عامر نذیر بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ. تو ریکویسٹ میری یہ ہے کہ ہم ایک خالصتاً سچائی کی بنیاد پہ ان لوگوں کے فائدے کے لیے پروگرام کرنا چاہتے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں. اگر میں کہیں سے کوئی ایسی بات کروں جو غلط ہے تو آپ لوگوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے نہ صرف روکیں بلکہ بتائیں کہ بابا یہ پوائنٹ آپ نے غلط شیئر کیا ہے، یہ ایسے نہیں ہے تو ایسے ہے. میں خوشی سے قبول کرنے کو تیار ہوں. میں اس لیے نہیں آیا کہ جو بھی میرے منہ میں آئے میں بیان کرتا جاؤں اور غلط انفارمیشن لوگوں کو دوں. نہیں، بالکل ہم نے ان ہمارا کا مقصد تبلیغ کرنا ہے، ہاں ٹرو ہم نے ان کا انفارمیشن. ہاں دیکھیں، بات یہ ہے مثلاً کہ یہ جو تعلیم ہے، مرزا قادیانی صاحب نے جو بھی غلط تعلیم، غلط عقائد اس کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. لوگ یہ جن کو یہ جو احمدیہ کلٹ کے لوگ ہیں، جن کو یہ گدی نشین بتاتے ہیں کہ یہ مولوی ہے، یہ سرکاری مسلمان ہے، یہ اس طرح کے لفظ استعمال کر کے نفرت پھیلاتے ہیں، ان مولویوں کو بھی خدا کے لیے سنیں. اپنی یہ اطاعت کی انک اتار کے تھوڑا سا ان لوگوں کو سنیں. مرزا صاحب نے جو لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر سے یہ لوگوں نے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ نہ صرف نبی تو دور کی بات ہے، مسیح موت تو دور کی بات ہے، وہ ایک انسان کہلانے کے، انسان اس معنوں میں کہ ایک شریف انسان کہلانے کے قابل نہیں تھا. یہ ساری تعلیم انہوں نے وہ اس کی چھپا دی ہے، اور آپ کو صرف 2-3 لائنیں بتا کے آپ کو لوٹ رہے ہیں. اور جن بیچارے آمدیوں کو سمجھ آ جاتی ہے، ان کے سامنے اخراج کی تلوار ہے اور دوسری سزائیں سامنے دکھا کے ان کے منہ کو بند کیا ہوا ہے. لیکن یہ جو مرزا مسرور صاحب ہیں یا دوسرے لوگ جتنے بھی ہیں ان کے گدی نشین، یہ کہتے ہیں فیس بک سے دور رہیں، فلاں سے دور رہیں. یہ چوری ان کی پکڑی گئی ہے. آج ہر بچے کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں فون ہے، اس کے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی ساری کرتوتیں بھی ہیں. نہیں بالکل چھپا درست بات. سکتے، آپ نہیں چھپا سکتے. آپ جو چھپاتے ہیں وہ ہر گھر کے اندر پہنچا ہوا ہے. یہ جو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میں میرے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دوں گا، یہ بھی آج سن لیں کہ پوری دنیا کے کونوں سے مرزا قادیانی پہ اس کی غلط تعلیم کی وجہ سے جتنی لعنتیں لوگ ڈال رہے ہیں، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو میں نے مثلا میرا آئی ایم سوری لمبا ہو جائے گا یہ جواب. تو بیسکلی یہ ہے کہ میں نے ضیاء رسول صاحب، میں جب اپنے گاؤں سے نکلا، میں نے جب اس کلٹ کو قریب سے دیکھا، میں نے ان کی تعلیم کو دیکھا، میں نے ان پر سرچ کیا، میں نے تصب کی انک اتار کے سیکھنے کے لیے دوسرے لوگوں کو سنا، تو خدا کی قسم رونا آیا. اور مجھے دکھ ہے اپنے ان بہن بھائیوں پہ جو اس ظالم کلٹ کے اندر نہ صرف پھنسے ہوئے ہیں بلکہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے حصہ ڈال رہے ہیں. خدا ان کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ یہی میرا سب کو جواب ہے. ہدایت ہاں نصیب فرمائے. مطلب کہ جی آپ کو کہیں سے محسوس ہوا کہ جیسے یہ مرزا غلام قادیانی کا جو مذہب ہے یہ درست نہیں ہے، پھر آپ نے اس پہ ریسرچ کیا، تو ریسرچ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ واقعی یہ کلٹ ہے اور ان کی تعلیمات جو ہیں وہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اور دین اسلام سے ان کا دور دور تک کچھ لینا دینا نہیں ہے.
تو یہ وجہ بنی آپ کی ریسرچ وجہ ہے یہ اس کلٹ کو چھوڑنے کی؟ دیکھیں میں نے اپنی یہ جب میں نے پہلی تقریر کی تو میں نے اپنی ماں جی کو فون کیا جی تو مجھے ماں جی کہنے لگے دیکھیں آپ نے یہ کیا آپ نے مثلا باتیں کی ہیں ہے نا. تو میں چونکہ وہ بزرگ ہیں میری ماں ہے مجھے سب سے پیاری ہے کل بھی تھی آج بھی ہے اور رہے گی. تو ماں جی کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ آپ نے تو مرزا صاحب کو نبی کہا ہے ہم تو اس کو صرف مسیح موعود مانتے ہیں. اب ایک تو وہ بزرگ ہے میں کیا بحث کرتا. تو میں نے کہا ماں جی چلو ایسے کر لیں کہ مربی صاحب سے پوچھ لیں گے. میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے گھنٹوں بات کر سکتا ہوں میں ماں جی کے سامنے تو نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا چلو ایک ہی لفظ پوچھ لینا کیا مرزا صاحب اس کو مسیح موعود مانتے ہیں کہ ساتھ نبی بھی یہ نبی بھی ہے. تو میں نے تو ایک لفظ نبی کا بولا ہے اس کے سارے عقیدے یہ سامنے رکھیں لوگ وہ جو کہتے ہیں نا کہ سر پہ پاؤں رکھ کے دوڑ جائیں یہ ان کے اپنے لوگ دوڑ جائیں ان کو پتہ نہیں ہے اور یہ میرے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں یا یہ بیچارے سوچ رہے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں جس نے کرنی ہے کریں جاؤ جا کے چندے بھی آپ دو لانتیں بھی لوگوں کے آپ اکٹھی کرو مخالفتیں بھی آپ اکٹھی کرو بد دعائیں بھی آپ کرو. ایک کام تو مرزا صاحب کو دے دو یہ گدی نشین کو اس کو خط لکھو کہ دعائیں کرے بد دعائیں کرے یا دعائیں کرے باقی کام آپ صحیح. کر لو. میرے لیے اس کی بد دعاؤں پہ آپ کو یقین ہے جاؤ ہر روز ہر آمدی ہر گھر سے خط لکھو. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ظالموں کی بد دعائیں قبول نہیں ہوتی لعنت کے ساتھ واپس ان کے چہرے پہ ڈالی جاتی ہیں. میرے لیے بد دعائیں نہ کرو. میں کہتا کیا ہوں میں کہتا ہوں سوال کرو. میں کہتا ہوں تو سب کی جو آپ کی نفرت کی جو سرکل بنا دیا انہوں نے آپ کے ارد گرد کہ یہ جو باقی علماء ہیں آپ کے خلاف ہیں وہ خلاف نہیں ہے. وہ جب آپ کے عقائد کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ روتے ہیں وہ ہنستے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں کہ آپ کہاں پھنسے ہوئے ہو. تو یہ ایک شیخ صاحب ہیں آج آپ کو ضرورت نہیں ہے کتابوں کی آج ہر چیز سوشل میڈیا پہ موجود ہے. ایک شیخ صاحب ہیں ان کو سن لیں طاہر ڈار صاحب ہیں ان کو سن لیں یہ ہمارے محترم بٹ صاحب ہیں ان کو سن لیں. کچھ کوشش تو کریں. جب تک آپ اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے خدا بھی آپ کی حالت نہیں بدلے گا. بالکل بے شک. جی اچھا چور صاحب آپ سے دوسرا سوال ہے میرا کہ قادیانی خواتین کے بارے میں کچھ ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں ان کے رہن سہن ان کے کردار کے بارے میں. بظاہر تو یہ سچے اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں تو اس بارے میں آپ کے پاس کیا مطلب کہ آپ جو حقیقی نالج اور آپ کا جو تجربہ مشاہدات جو آپ کے ہیں کہ ان کی خواتین کا رہن سہن کردار کیسا ہے. اور دوسرے نمبر پہ اسی سے ریلیٹڈ ہی اس کویسچن کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ قادیانیت میں اس کلٹ میں خواتین پر بہت سے معاملات کو لے کر ظلم کیا جاتا ہے ان کے حقوق کو لے کر ان کی جو ہے سوشل لائف کو لے کر ان کی فیملی لائف کو لے کر ان پر ظلم کیے جاتے ہیں. تو یہ کیا معاملات ہیں کس حد تک ان میں سچائی ہے اور اس بارے میں آپ کے مشاہدات کیا ہیں؟ دیکھیں زیار رسول صاحب بات یہ ہے جب قادیانی خواتین کے کردار کی بات کی جائے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس کے اندر ہیں ٹھیک ہے پہلی بات تو جی یہ ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے وہ 1000 گنا اور لاکھوں گنا زیادہ بہتر ہے. جہاں تک عقائد کا تعلق ہے عقائد تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب کسی کا عقیدہ ہی اس کو بتایا نہیں گیا تو وہ بیچاری اس کے اندر پھنسی ہوئی ہیں تو ان کا قصور نہیں ہے. کردار ان کا بہتر ہے اور اللہ کرے اور بہتر ہو ٹھیک ہے. جہاں تک بات رہ گئی آپ کی اپنا کا جو دوسرا سوال ہے جو میں سمجھاؤں یہ ہے کہ کس حد تک ان پر پابندیاں لگائی گئی ہیں سوشل طور پہ. یہ سوال کا دوسرا جی حصہ ہے میرا خیال ہے. جی جی ہاں اس حصے پہ میں آتا ہوں. بات یہ ہے دیکھیں
बेशुमार पाबंदियां हैं। ये मजहब है क्या? ये मजहब जो है, ये मैंने जैसे पहले बोला, मैं नफरत के साथ नहीं बात करता, ये रियलिटी है। ये ना कोई फिरका है, ना कोई मजहब है, ये एक फितना है। और जब लोगों को समझ आ गया कि फितना है, तो फितना वालों ने इन जालिम गद्दी नशीनों ने, इनके पेड मुरब्बियान मौलमीन ने एक ऐसा जाल तैयार किया हुआ है कि उस फितने के अंदर से इनको निकलने भी नहीं दे रहे, मुख्तलिफ पाबंदियां लगा के, जिसको अखराज बोलते हैं। ये आम दिया कल्ट के लोग सुन रहे होंगे और सुनेंगे और हकीकत को समझेंगे। और मैंने पहले भी बोला था, ये कोनों में अंदर बैठ के रोएंगे भी इन पाबंदियों की वजह से, और रोते भी हैं। इनको हिम्मत करनी चाहिए, सामने आना चाहिए। अच्छा, जो आप कहते हैं कि इन पे कैसे जुल्म किया जाता है, मुझे ये बताएं। एक एक ऐसा कोई भी आमदी, कोई भी फैमिली, उनका कोई मसला हो या वो अपने हकूक के लिए आवाज उठाएं, ये उनका अखराज कर देते हैं, ठीक है। उसके मतलब बाद कोई भी अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है और वो उस पर एहतजाज करने का राइट नहीं रखता, उस पर इवन के बात करने का या शिकायत करने का भी राइट नहीं रखता, अगर करेगा तो उसको जमात से निकाल दिया जाए। इनकी ज़िया रसूल साहब, इनकी जो हर पॉइंट है, हर इनका जो एक बात है, उसके ऊपर कई कई घंटे के लिए अलहदा प्रोग्राम चाहिए। सही। इनका निज़ाम जो है, ये जब तकरीर करते हैं कहते हैं जी दुनिया का निज़ाम इंसाफ, बात ये दुनिया की करते हैं। इनका अपना निज़ाम इंसाफ देखें, शर्म आती है। इस पे पूरा प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। इनके अंदर ये है, यहाँ पे देखें, कनाडा के अंदर रहते हुए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को किसी वजह से पसंद नहीं करते, या कोई भी झगड़ा है, आइली झगड़ा है, राइट, तो इनकी तरफ से ये पाबंदी है कि आपने झगड़ा पहले हमारे पास लेके आना है। और सही। एक ऐसे अनट्रेंड बंदे, ये भट्ट साहब सुन रहे हैं, जहां से मैं कुछ गलती करूं मेरी तस्दीक करें, मुझे खुशी होगी। ऐसे अनट्रेंड बंदे जो ना वकालत की तलीम रखते हैं, ना कानून की तलीम रखते हैं, वो उन दोनों पार्टियों का ऑल इन वन जज होता है। ऑल इन वन जज मसलन ये है कि अदालतों में क्रिमिनल कोर्ट और होती है, सिविल कोर्ट और होती है, फैमिली कोर्ट और होती है। इनका माशाल्लाह ऑलराउंडर है। कोई इनका हसन साहब या नईम साहब किसी को उठा के, वो बीमार है ये भी नहीं पता, उसकी तलीम क्या है ये भी नहीं पता उसको। ये तमाशा है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है। ये एक तमाशा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यामदिया कल्ट के अंदर फंसे हुए लोग अपना दफा करने के काबिल नहीं रहे, आवाज उठाने के पता नहीं इनको समझ आती है, खुदा जाने ये क्यों नहीं आवाज उठाते। जब आप कहते हैं कि ये खवातीन के साथ किस हद तक उनकी सोशल बाइकाट करते हैं, देखें, लोग किसी की माँ बहन का उसके सामने नाम लेना भी किसी हद तक लोग इज्जत के साथ लेते हैं। शर्म आती है कोई बात करनी हो फैमिली के बारे में, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। ये छोटी छोटी बात पे एक गलत फैसले, और ये मानते हैं कि हमारे मुरब्बियान मौलमीन, ये खुद इनकी तकरीरों के अंदर शामिल है कि ये जुल्म के साथ, नाइंसाफी के साथ फैसले करते हैं। और फिर उस बच्ची का, जिनके सदके पे ये लोग पल रहे हैं, जिनके सदके पे ये मुरब्बियान और मौलमीन के चूल्हे जल रहे हैं, और ये लंबी लंबी जो गाड़ियां लेके सदके की गाड़ियों पे घूम रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये मुरब्बी मौलम खड़े हो के उनका फिर अखराज करते हैं, उन बेटियों का, उनके ऐलान, उनका नाम ले लेके ऐलान करते हैं कि फर्ज करें कि मसलन, मुझे ये बताएं ज़िया रसूल साहब, मैं आप जरा सोचें, किसी की बेटी, जो आप लोग इसमें शामिल है, आप सोचें तो सही, आपकी बेटी का मस्जिद में ऐलान हो और सारे लोग नफरत के साथ फिर देखें, और वो बेटी मुंह छुपाती फिरे, और एक मस्जिद में नहीं पूरी दुनिया में। क्या ये इस्लाम है? क्या ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की तलीम है? क्या हमें इस्लामी हिस्ट्री में ये इस तरह की कोई बकवास या तमाशा नजर आता है? और दुख की बात यह है कि ये लोग कनाडा,
अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस के अंदर रहते हुए भी जहां पे आज़ादी है स्पीच की, ये इस तरह की जिल्लत अपने गले में डालते हैं और उस फैसले को खुशी से कबूल करते हैं। पता नहीं भट्ट साहब, आप कुछ बता सकते हैं कि खुशी से कबूल कर सकते हैं कि लानत का तवक्क इनके गले में डलता है और फिर भी आके चंदा देते हैं और माफी मांगे। और शर्म करनी चाहिए आपको, कोई खुदा का खौफ करो। आप कहते हो ऐसे चोरी नफरत फैलाता है। अभी चौर साहब, अभी ये रिसेंटली एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जी एक खातून है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो उन्होंने एक जो है ना, जिस तरह आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक प्रोग्राम में। अब जैसे इंटरव्यू दिया तो उसके बाद ये सारी जमात जो है हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई। इवन कि उसका एड्रेस निकलवा लिया, उसका नाम, पता, फैमिली बैकग्राउंड, सारा कुछ उसका बायोडाटा निकाल के उसको वो थ्रेड करने लग गए और इतना उसको प्रेशराइज किया कि इंटरव्यू से अगले ही दिन वो जहाँ पर जिस चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू किया, उस चैनल के ओनर को वो ट्राई कर रही थी कि कांटेक्ट हो, उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। मेरे साथ उन्होंने कांटेक्ट किया, मेरा नंबर कहीं से उनको मिला, तो यकीन करें कि वो रो रही थी, फैमिली वाली मतलब कि बच्चों वाली वो खातून है, और वो रो रही थी कि मेरे साथ इन लोगों ने पता नहीं क्या कर देना। मैं इतना, मुझ पे प्रेशर आ गया, इतना प्रेशर आ गया है कि अब मैं यहाँ बैठी कांप रही हूँ जब ये आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ कि पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर देंगे, मेरे बच्चों के साथ क्या कर देंगे, मेरे हस्बैंड के साथ कुछ कर देंगे। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझसे जितना मर्जी हरजाना ले लें, मेरा वो जो इंटरव्यू है वो उस चैनल से डिलीट करवा दें, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी कभी भी। मतलब हाँ, कि बात करने का, अर्ज करने का ये है कि देखें, ये दूसरों को ये कहते हैं कि जी ला इकराह फिद्दीन, के दीन में कोई जबर नहीं है। मुसलमान जब इन पे सख्ती करते हैं तो इनको ये याद आ जाता है कि दीन में कोई जबर नहीं है, और ख़ुद ये अपनी कम्युनिटी से निकलने वालों के साथ क्या सलूक करते हैं। इंसानियत सोच के इंसानियत भी शर्मा जाए। अब एक खातून अगर नहीं, उसका जो है वो आपके तालीमात से वो मुतमिन नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया, अब आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई? जब गुस्ताखियों के मामले होते हैं, ये कुफार के बयानी को लेकर शोर मचाते हैं कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस पर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो भी तेल लेने चली गई है। अब जो है ला इकराह फिद्दीन का फरमान भी याद नहीं है इन लोगों को। अब इनकी अपनी शरीयत है, और अब ये डिक्टेटर बने हुए, बदमाश बने हुए हैं कि उनका जीना इन लोगों ने हराम किया हुआ है। आपने अभी एक बात की है कि ये इन लोगों को शर्म नहीं आती कि ख़वातीन का जो है ये ऐलान करते हैं मसाजिद में। यहाँ पर पहले मैं बाबर भट्ट साहब को आपने मुखातब किया, उनको जो है मैं मौका देता हूँ। उसके बाद आमर नज़ीर भाई हैं, वो इस बारे में बताएंगे आपको कि ये इस्लाम ने तो तलीम नहीं दी इनको किसी की माँ बहन की इज़्ज़त उछालने की, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने अलबत्ता ज़रूर दी है, और कैसे कैसे उन्होंने लोगों की बच्चियों की इज़्ज़तें उछाली हैं, ये इंशाल्लाह आमर नज़ीर भाई बताएंगे। बाबर भट्ट साहब, आपसे चौधरी साहब ने कुछ पूछा था। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया ज़िया रसूल भाई मुझे स्ट्रीम में लेने के लिए, और अपने भाई एस ए चौधरी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भाई बड़े मजबूत एसाब के मालिक हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे जो मुश्किल काम है वो कीदा बदलना है, और एस ए चौधरी साहब ने कादियानियत का पिंजरा तोड़ा है। ये एक नफ्सियाती पिंजरा होता है, लोग सारी जिंदगी उस पिंजरे में रहते हैं, उसे पसंद भी नहीं करते, जानते भी हैं कि ये कैद है, लेकिन वो पिंजरा तोड़ नहीं सकते। ये मजबूत एसाब के मालिक तोड़ते हैं पिंजरे। ये जो जिक्र हो रहा है अखराज का, और खवातीन जो किसी की बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, उनका ऐलान किया जाता है और फिर उनसे रिटन लिखवा के माफी मंगवाई जाती है, उनकी अना को धचका दिया जाता है कि माफी मांगो। ये मुझे तो कहीं पे तारीख में मैंने नहीं पढ़ा कि फिरौन ने भी ऐसे माफी मंगवाई हो या नमरूद ने भी। ये जो मुतलकुल अनानी है और ये जो खलीफे कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये सबसे बड़ी माजरत के साथ ज़िया रसूल भाई और एस ए चौधरी साहब, नीचे आमर नज़ीर भाई भी हैं, शुजात भाई भी हैं, कि ये जो शख्स सबसे काबिल ये जो लेके आए हैं, इसकी हालत ये है कि अगर ये उर्दू में कोई खुतबा दे रहा हो या खिताब कर रहा हो, पढ़ रहा हो कुछ, और वो कागज, वो पेपर पंखे की हवा से उड़ जाए,
تو खिलाफत मुंह के बल जा गिरती है, वो आगे बोल नहीं सकता कुछ। अगर वो हवा से ऊपर गया कागज तो खिलाफत ऊपर, अगर वो जाके किसी जोड़ या छप्पड़ में गिरी वो खत्म हो जाएगा। ये सबसे काबिल आदमी है जिसे कुरान भी पढ़ना नहीं आता। मैं ऐसे चौधरी साहब थोड़ा सा वक्त लूंगा, 1 मिनट और, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं, सिर्फ 1 मिनट। मैंने एक वीडियो देखी है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के नौनहाल, मैं उनसे मुखातिब हूं, वालिदैन से जो इनके हवाले करके बच्चे चले जाते हैं, इनकी तो ये जॉब है, ये तो पैसा ही इस तरह कमाते हैं। खुदा के लिए अपने बच्चों के ज़हनों में नफरत ना भरें। हम सबके रिश्तेदार कादियानी हैं, ऐसे चोरी सब आपके रिश्तेदार भी हैं। हम उन्हें मारना नहीं चाहते, हम उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, एक बच्चे से सवाल पूछवाया गया है, वो बच्चा माइक भी नहीं उठा सकता, 4 साल का बच्चा है। यकीनन ये पीछे से उसको तरबियत दे के ट्रेन करके सामने लाए हैं, और वो माइक पकड़ के उसे सही उर्दू भी नहीं अभी बोलना आती, वो अल्फाज नहीं अदा कर सकता। वो कहता है हुजूर पाकिस्तान में हम पर बहुत पाबंदियां हैं, हमारे कलमे जला दिए जाते हैं। ये 4 साल के बच्चे के ज़हन में नफरत डाल रहे हैं, और जब बच्चे के ज़हन में नफरत डाली जाए वो सारी जिंदगी नहीं निकलती। एक और वीडियो है जो कभी दिखाऊंगा, मैं ज़िया रसूल भाई को दूंगा, या एडिट करके लगाएंगे। एक छोटी बच्ची मिर्जा मसरूर साहब से पूछ रही है कि हुजूर क्या हम मुसलमानों की नातें सुन सकते हैं, और मिर्जा साहब आगे जवाब देते हैं क्या वो हमारी नज़में सुनते हैं जो हम उनकी नातें सुने। चौधरी साहब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, दूसरी जंग अज़ीम में फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई हुई थी, लाखों बंदे मर गए थे इनके, लाखों। मगर आज उन्होंने बॉर्डर खोल दिया, आज की महज़ब दुनिया आपस में तिजारत कर रही है, वो बच्चों के ज़हनों में नफरत नहीं डालते। कुछ अरसा तो मैंने बहुत अरसा MTA देखना छोड़ दिया है। MTA पे इन्होंने एक वीडियो बनाई थी एडिट करके कि हमारे उलमा कराम के खिलाफ, हमारे उलमा कराम को ये दिखाते थे ऐसे कि उनकी आंखें सुर्ख करके दिखाते थे, उनके हाथ में डंडे पकड़े हुए हैं, वो जैसे आग लगा देंगे। तो उसमें किसी प्रोड्यूसर ने कहा था कि मिर्जा साहब जरा हाथ ओला रखो, और उसको नौकरी से जाना पड़ा था। उसे कहा गया था कि इस मिशन पे अगर काम करना है, उलमाए पाकिस्तान को अगर जालिम दिखाना है तो नौकरी है, वरना अपनी और नौकरी ढूंढे, हमें प्रोड्यूसर नया मिल जाएगा। तो ये नफरत की जो आग भड़का रहे हैं मिर्जे, उनका तो कारोबार है, उनका बिजनेस है। तो खुदा के लिए मैं उन लोगों से कह रहा हूं जिनको पैरोकार हैं, वो अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचें कि ये उनके ज़हन में क्या डाल रहे हैं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हमारे बहुत ही, मैं तो तिफले मकतब हूँ, हमारे बहुत ही मोहतरम भाई बैठे हैं, उन्हें कुछ वक्त दूंगा। एक दफा फिर आपका शुक्रिया, आपने मुझे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर भट्ट भाई, माशाल्लाह आपने जो है आंखें खोल देने वाले हकायक यहाँ पे बयान किए हैं। अल्लाह ताला इनको भी समझ अता फरमाए। ऐसे चौधरी साहब ने एक बहुत ही अहम बात यहाँ पे बयान की है ख़वातीन के हवाले से, कि ये लोग, इनके यहाँ ख़वातीन की इतनी सी इज़्ज़त है कि उनका नाम ले लेकर ऐलान करवाए जाते हैं, और इस तरह से सरेआम उनकी इज़्ज़तों को उछाला जाता है। फिर इन्होंने क्वेश्चन के तर्ज में इन्होंने पूछा कि आया इस्लाम ने ऐसी कोई तालीम दी है? तो इस्लाम ने तो यकीनन नहीं दी है, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने ज़रूर दी है। मैं चाहूँगा कि अमर नज़ीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि मिर्ज़ा साहब कैसे ख़वातीन की, मुसलमान ख़वातीन की इज़्ज़तों को बिल्कुल इसी शक्ल में उछाला करते थे जैसे ऐसे चौधरी साहब ने बताया कि ऐलानात करवा करवा कर उनकी इज़्ज़तें उछाली जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अमर नज़ीर भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया रसूल भाई आपका। बाबर भट्ट साहब खैरियत से हैं? ऐसे चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं अमर नज़ीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सब भाइयों का शुक्रिया। मैं असल में तो ज़िया रसूल भाई के हुक्म पर बस सुनने ही आया था गुफ्तगू, और ऐसे चौधरी साहब की गुफ्तगू बड़ी मुतासर करुन, और भट्ट साहब का अंदाज़ बयान बड़ा मशहूर कुन था। मैं बड़े तवज्जो से इन्हमाक से सुन रहा था। देखें, जो बातें ऐसे चौधरी साहब ने की हैं उनमें जो सबसे अहम बात है वो यही है कि इनका जो निज़ाम, जिसका ये अपने लोगों को धोखा देते हैं कि हमने एक निज़ाम मुतारफ़ करवाया है, हमने एक निज़ाम पेश किया है, और बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने बयान किया कि इस निज़ाम में उन्होंने
एक छोटी सी अदलिया भी बनाई हुई है, रखी हुई है। मैं आपके सवाल का जवाब देने लगा हूँ ज़िया भाई, जो औरतों पर जुल्म इनकी रवायत या इनकी विरासत है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। लेकिन जिन्होंने इनकी जुडिशरी का हाल बयान किया वो मुझे बड़ी बात पसंद आई है कि एक जज बना के बिठाया हुआ है, ना उसको कानून का पता है, ना उसको दीन की फिक्र का पता है, ना उसको कोई किताब और सुन्नत की तालीमात का पता है, ना उसको मिर्जा साहब की तालीमात का ही पता है। उसको बिठाया हुआ है जज बना के, और वो फौजदारी मुकदमात भी वही देखेगा, दीवानी मुकदमात भी वही देखेगा, घरेलू सिविल मुकदमे भी वही देखेगा। असल इसकी बैकग्राउंड ये है कि ये चाहते हैं कि इस तरह से हम अपना अदालती निज़ाम बना के, अपनी एक छाप बना के, जगह बना के, एक अपना एक अलग सर्कल बनाएं और अपना एक सेटअप मुतारफ करवाएं दुनिया को। अगरचे हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई इलाका नहीं है, कोई ज़िला नहीं है, कोई यूनियन काउंसिल भी नहीं है, लेकिन अपने सोसाइटी का एक अलग मकाम बना के लोगों को दिखाएं कि देखो हमने अपनी जुडिशरी बनाई हुई है, वहाँ हम इंसाफ करते हैं और वहाँ हम अदालतों में फैसले करते हैं। ये रीत इनकी बहुत पुरानी है। मिर्जा बशीर के दौर में जिन लोगों ने कादियान में इन लोगों की मुखालफत की, कादियानियों की मुखालफत की, उनके घरों को आग लगाई गई, उनको कादियान बदर किया गया, हुक्म दिया गया कि कादियान से बाहर जाकर रिहाइश रखे। कादियान में स्टाम्प बिकते थे, उन स्टाम्पों पर ये अपीलें होती थी मिर्जा बशीर के सामने। ये बातें सारी जीडी खौसला की उस फैसले में लिखी हुई है जो इनके अल-फज़ल अखबार में भी छपा है, आपने भी मेरे ख्याल ज़िया रसूल भाई आपने भी यहाँ पेश किया है। तो ये असल में उस अपनी रीत को बरकरार रखना चाहते हैं कि अगरचे हम लोगों को कादियान बदर किया करते थे, आज हम खुद दरबदर हो चुके हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा ये दबदबा बना रहे, कम से कम अपनी सोसाइटी पर ये जमा रहे, और बाद में कभी हमें कोई मौका मिले किसी यूनियन काउंसिल, किसी जिले में, किसी तहसील में, तो हम अपने कोई चार पैर दिखा सकें। लेकिन ऐसे होगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद दीन कुल्लिह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन इन तमाम अदियान बातिला पर गालिब आने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस ही इसलिए किया गया है। इनसे पहले कई आए हैं मुदय्यन नबूवत और कई गए हैं, ये बेचारे क्या करेंगे। आए जो आपने सवाल किया है उसकी तरफ, औरतों पर जुल्म इनकी पुरानी विरासत है। देखें इस बात का जो इनका मौजद है, इनके अकीदे का, मिर्जा साहब कादियानी, अगर उनको एहतराम नहीं था कि औरतें कोई वाजिबुल एहतराम शख्सियत होती हैं, कोई मकाम उनका होता है, उनके साथ मर्दों जैसा सलूक नहीं किया जा सकता, उनको हरासा नहीं किया जा सकता, उनको थ्रेट नहीं किया जा सकता, वो नफ्सियाती तौर पर कमजोर अल्लाह ताला ने उनको तख्लीक किया है, उनको हम हरासा नहीं कर सकते। अगर मिर्जा साहब को इस बात की परवाह नहीं थी तो आज जो इन्होंने सेटअप बनाने की कोशिश की है और लोगों पर जिस तरह से जुल्म रवा रखा है, जिसकी ये दास्तान चौधरी साहब बयान कर रहे थे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी सी मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। मिर्जा साहब के बेटे फजल का ससुर था अली शेर बेग, और अली शेर बेग का साला था अहमद बेग, जिससे मिर्जा साहब रिश्ता मांगते थे मोहम्मदी बेगम का। अब मोहम्मदी बेगम का रिश्ता अगर अहमद बेग ने नहीं दिया तो मुझे बताएं इसमें अली शेर बेग का क्या कसूर है, या अली शेर बेग की बीवी का क्या कसूर है जिसका भाई है अहमद बेग। उन दोनों मियां बीवी का क्या कसूर है? चले उनका भी कसूर मान लें कि वो अहमद बेग के साथ उनका ताल्लुक होगा। जो फजल की बीवी है, जो अली शेर बेग की बेटी है, उसका क्या कसूर है इज्जत बीबी का? 1 महीना या 2 महीने होने वाले रमजान के बाद यहाँ हिंदुस्तान के सूबा केरला से इनका एक मुरब्बी था, वो आजकल इसराइल में मुकीम है, शम्स साहब, उनके साथ मुनाजरा हुआ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो 2 हफ्ते वो मुनाजरा चलता रहा। मैंने उनके सामने यही बात रखी, आपके मिर्जा साहब, आप तो कहते हैं ना कि वो बड़ी आला शख्सियत थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िल और बरूज थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। आपके मिर्जा साहब तो सारे जहानों के लिए रहमत है, मुसलमान उलमा के लिए, ईसाइयों के लिए, हिंदुओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए, घर वालों के लिए, किसी के लिए मिर्जा साहब के होंठों से कभी रहमत के 2 बोल नहीं निकले। इनका एक मुरीद था गुलाम हुसैन, उसके बच्चे लड़ पड़े, इनके बच्चों के साथ मिर्जा साहब ऊपर से आए, इन्होंने देखा ये बच्चे, इन्होंने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए उन बच्चों को, गुलाम हुसैन के बच्चों को। वो फिर ऐसा बिदका गुलाम हुसैन, वो अपनी बीवी उसको लेकर ही चली गई। उसने कहा ये अच्छे मसीह मऊद हैं, छोटे बच्चे हैं मासूम, अगर वो लड़ पड़े हैं तो मसीह मऊद का तो काम नहीं ना थप्पड़ मारना बच्चों को।
तो मिर्जा साहब ने किसी को भी नहीं बख्शा। बहरहाल वो मैंने जिक्र किया कि मिर्जा साहब ने ये जुल्म ढाया है, अपने बेटे का घर उजाड़ा, अपना घर उजाड़ा। जो हुर्मत बीबी इनकी पहली बीवी थी उनको तलाक दे दी सिर्फ मोहम्मदी बेगम के लिए। मैंने कहा यार मिर्जा साहब के साथ जो उनके खुदा ने वादा किया हुआ था कि मैं तमाम रुकावटें दरमियान में से उठा दूंगा और इस औरत को बिल आखिर तेरे नकाह में लाऊंगा, जब मिर्जा साहब को इतना यकीन उनके खुदा ने दिलाया हुआ था तो मिर्जा साहब अपने हाथ से ये रुकावटें क्यों उठाते रहे? हुर्मत बीबी को तलाक दे दी, फजल और सुल्तान को जायदाद से आग कर दिया, फजल का घर उजाड़ दिया और कहा कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, इज्जत बीबी को। क्यों? इसका मामू मुझे रिश्ता नहीं देता। देखो इज्जत बीबी का क्या कसूर है? इज्जत बीबी का मामू है अहमद बेग, वो रिश्ता नहीं आपको देता, तो इज्जत बीबी बेचारी का क्या कसूर है? कहते हैं मुझे वो मुरब्बी साहब कहते हैं कि आपने कहा तो है कि इज्जत बीबी मजलूम है, लेकिन इज्जत बीबी के हाथ की कोई बात, कोई उसकी जुबान की कोई मजलूमियत की दास्तान सुनाए। मैंने कहा मुरब्बी साहब मैं सुनाना नहीं चाहता था, क्योंकि जिगर कांपता है इज्जत बीबी के वो अल्फाज सुन के। जब इज्जत बीबी ने रुक्का लिखा अपने वालदैन को, अली शेर बेग को और अपनी वालदा को, कि अम्मा मामू को तुम समझाओ, मिर्जा साहब अच्छे हैं मेरे साथ, उन्होंने मेरे साथ कभी बुरा सलूक नहीं किया, लेकिन अगर मोहम्मदी बेगम का रिश्ता नहीं मिला तो फिर मेरी तलाक हो जाएगी, मिर्जा साहब कतन मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। अगर तुम मामू को नहीं समझा सकती तो फिर मुझे आकर कादियन से ले जाओ। मैंने कहा ये अल्फाज पढ़ते हुए जिगर कांपता है उनका, जिनके अपने घर में बेटियां हैं। तो वो एक मासूम बच्ची थी, उस पर इनके मसीह मऊद ने अगर इतना जुल्म रवा रखा है, अगर उनको इस बात का एहसास नहीं है कि औरत अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पर एक सेंसिटिव मखलूक तख्लीक की है, नर्म नाजुक चीज है, उसके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जा सकता, उस पर यह जुल्म रवा नहीं रखा जा सकता। सोचें तो सही उस बच्ची के ख्यालात और एहसासात जब वो अपनी माँ को या अपने वालिद को ये खत लिख रही थी कि अम्मी अगर तुम मामू को नहीं समझा सकती तो फिर मुझे यहाँ से कादियन से आकर ले जाओ, या कोई बंदा भेजो वो मुझे आके ले जाए, फिर यहाँ नहीं रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, रुसवाई होगी, तलाक होगी मेरी, यहाँ से मुझे मेरा घर बर्बाद होगा, अगर मामू को समझाओ तो अच्छी बात। तो वो बच्ची ने बड़ी कोशिश की, वो उसकी माँ ने कहा मैं कैसे अपने भाई को समझाऊं कि वो छोटी सी बेटी का मिर्जा साहब को रिश्ता दे दे। लेकिन बहरहाल वो एक लंबी कहानी है, लंबी दास्तान है, उसका खुलासा ये है कि सबसे ज्यादा मजलूम इस कहानी में वो इज्जत बीबी थी जो फजल की बीबी थी, मिर्जा साहब की बहू थी। मिर्जा साहब ने उसको मालूम नहीं किस जुर्म की सजा दी और उसको तलाक दिलवा दी फजल से। तो ये इनकी पुरानी विरासत है, औरतों से जुल्म करना, औरतों से इस तरह का नारवा सलूक करना, जिस बात की तरफ चौधरी साहब इशारा कर रहे थे, ये इनको मिर्जा साहब से विरासत में मिली है। हाँ, ये जो बाबर भट्ट साहब बात कर रहे थे ना, इनको ये बच्चों को बचपन से छोटे होते ये तालीम देते हैं और इनके जहनों में ये नफरत भरते हैं कि हजूर आप बताएं कि जो पाकिस्तान में हम पर पाबंदियां हैं, वो छोटा सा बच्चा है, उसको पता भी नहीं है पाबंदी क्या होती है, जुल्म क्या होता है, लेकिन उसके ज़हन में ये बातें डाल के उसको ये सवाल पकवा के बिठाया गया है सामने कि तुमने ये सवाल करना है हजूर। वो सवाल कर रहा है। बाबर भट्ट साहब अगर इन्होंने ये नफरत बच्चों के ज़हन में डाली है ना, तो वो दूसरी तरफ छूट भी है ना, दूसरी तरफ बच्चे के ज़हन में ये भी डाला है कि ये नफरत अंदर छुपा के रखनी है, जुबान पे यही रखना है, लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन, जुबान पे ये रखना है, ये नफरत जो तुम्हारे दिल में हमने जो टीका जहर का भरा है ना, ये अपने दिल में रखनी है, ये कि मौका आएगा तो लगाना। अल्लाह ताला इनको हदायत दे। ये ऐसा एक ग्रोह है जिसका चौधरी साहब भी जिक्र कर रहे थे कि ना कोई ये मजहब है, ना कोई ये फिरका है, ना कोई जमात है, ये एक क्रिमिनल सा ग्रोह है और मुजरमाना सोच का मालिक। और फिर होता क्या है, इनकी इन मुजरमाना सोच और नफरत अंगेज कार्रवाइयों से और जुबान दराजों से, अभी मैं थोड़ी देर पहले इनका एक चैनल है उसको मैं देख रहा था, उस पर वो इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा था मुस्लिम उलमा के बारे में कि जी वो हमारे एक बरेलवी मसलक के आलम दीन है, वो जेलम गए हैं, वो मौलवी बुरहानुद्दीन इनका था, किसी जमाने में मिर्जा साहब का मुरीद हो गया था, तो उनकी कब्र पे उन्होंने जाके कहा कि देखो ये कादियानी था, इसकी कब्र के ऊपर ये जो कलमा वगैरह लिखा है इस्लामी शार है, और अब पाकिस्तान का कानून है 30 साल होने वाले हैं कि इस्लामी शार ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये नेम प्लेट हटवा दें। इसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये कब्र उखाड़ के इसको बाहर फेंक दे या इस कब्र में कोई आग भर दे, ये तो नहीं उन्होंने कहा।
उन्होंने सिर्फ इतना ही मुतालबा किया कि कानून के मुताबिक ये इस्लामी शार को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतनी गंदी जुबान इनके टीवी एंकर ने इस्तेमाल की, इतनी गालियां दी कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो मैंने कुछ उसकी वॉइसेस रिकॉर्ड करके अपने वो राह अमन ग्रुप में सेंड की हैं कि ये बाद में इस तरह की बदजुबानी करते हैं यहाँ बैठ के, यूरोप में, बरतानिया में, कनाडा में, अमेरिका में। आसान है, आप जो मर्जी कह सकते हैं। वो जिस तरह उसने कहा था कि हमारा दुश्मन वो है जो दरिया के पार खड़ा होकर गाली देना आसान समझता है। आप बरतानिया में बैठ के या कनाडा, अमेरिका, यूरोप में बैठ के मुस्लिम उलमा को, मुस्लिम उम्मत को गाली दे सकते हैं। नतीजा क्या होगा? पेशावर का वाकया देख लें, लाला मूसा का वाकया देख लें, ये दीगर वाकया जो अब पाकिस्तान में शुरू हो गए हैं, ये आपकी इस जुबान दराजी और इस नफरत की वजह से हैं जो आप अपने बच्चों के और अपनी कौम के अंदर भर रहे हैं मुस्लिम उम्मत के खिलाफ। ऊपर से आप कह रहे हैं हमें बड़ा दर्द है पाकिस्तान का, ऊपर से आप कह रहे हैं हमें, ये भी सऊदीया की बात शुरू हुई थी पिछले हफ्ते कि सऊदीया ने कोई पाकिस्तान से मुतालबा। जितनी खुशी इंडिया के जो टीवी चैनल्स वाले हैं उनको खुशी हुई है, इससे बढ़कर इनको खुशी हुई है कादियानियों को। इतना प्रोपेगेंडा इन्होंने किया है, इतना उछाला है उस बात को कि देखो जी सऊदीया ने पाकिस्तान को कहा है हमारा ये मुतालबा तस्लीम करो वरना वो हमारा कर्जा वापस दो, तेल की सप्लाई बंद कर। बिल्कुल मैंने देखा है जो जुबान इंडिया वाले बोल रहे थे ना अपने चैनल्स पर, वही जुबान इनके जो सोशल मीडिया पर, जो इन्होंने यूट्यूब वगैरह पे चैनल बनाए हुए हैं या रबा टाइम्स वगैरह, उन पे वो बोल रहे हैं। तो बाद में ये किस मुंह से कह सकते हैं कि हमारा मुस्लिम उम्मत से कोई हमदर्दी है या दर्द है? हरगिज नहीं। इनके अंदर जहर भरा हुआ है और बचपन से ही ये उनके अंदर जहर भर रहे हैं, बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर, हर एक के अंदर मुस्लिम उम्मत के खिलाफ जहर भर रहे हैं। जब ये बड़े होंगे, जाहिर है पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं और मसाइल पैदा कर रहे हैं और इल्जाम सारा हमें दे रहे हैं और कहते हैं देखो जी आप यहाँ से लोगों को चार्ज कर रहे हैं और पाकिस्तान में आपके लड़के वो जज्बात में आके उन्होंने वो ताहिर नसीम को गोली मार दी या कोई और वाक़या हो गया। ये अपनी कार्रवाइयां नहीं देखते कि हम कौन सी जुबान बोल रहे हैं मुस्लिम उलमा के खिलाफ और खत्म नबूवत के लोगों के खिलाफ। खत्म नबूवत नबी अलैहिस्सलाम का खासा है, मुस्लिम उम्मत का हक है उसका दिफा करे। मुस्लिम उम्मत का हक है कि वो अपने मजहब को आपसे अलग कर ले कि भाई दफा हो जाओ, आपका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने अपना कोई नबी कर लिया, आप जाने आपका नबी जाने, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। मुस्लिम उम्मत का हक है, जिस तरह आप लोगों का हक है आपने लाहौरी ग्रोह से अलहदा कर दिया अपने आप को, इसी तरह से अब्दुल गफ्फार जंबा को या दीगर जो मुदय्यान पैदा हुए उनको आप नीचे नहीं आने देते, करीब नहीं आने देते। मुस्लिम उम्मत का भी हक था कि जब उन्होंने देखा कि आपने सारे अपने अकायद अलग कर लिए हैं, आपके मिर्जा साहब ने कहा हमारा इस्लाम इनसे जुदा, हमारा खुदा अलग है, हमारा कुरान अलग है, हमारा दीन अलग है, हर चीज हमारी इनसे अलग हो, तो मुस्लिम उम्मत ने आपसे पांडा टिंडा अलग कर लिया। इसमें लड़ने वाली झगड़ने वाली कौन सी बात है? अगर मुस्लिम उम्मत के स्कॉलर्स या हमारे जैसे कोई कम इल्म कम अकल वाले सोशल मीडिया पर बैठकर कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के इस खासे के लिए हमारा लहू भी हाजिर, हमारी जान भी हाजिर है, हमारी इज्जतें भी हाजिर, हमारा माल भी हाजिर, तो ये हमारा हक है, ये हमारा ईमान है। आप गालियां देंगे, नफरत पैदा करेंगे अपने खिलाफ भी और अपनी उस कम्युनिटी के खिलाफ भी जो वहां पाकिस्तान में रहते हैं लोग मजबूर। इनको सोचना चाहिए, अकल के नाखून लेने चाहिए कि आप लोगों को ये जो बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बड़ा सेटअप है और हमारी बड़ी कम्युनिटी है, बड़ी स्ट्रांग कम्युनिटी हम तैयार कर रहे हैं, आप अपने खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं और अपने लोगों को मरवाने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ना आपकी कोई अमेरिका मदद करेगा, ना बरतानिया मदद करेगा। जो रह गए हैं चार टोटरू, उनको भी आपने पाकिस्तान से खींच के बाहर निकाल के पक्का ही बाहर शिफ्ट हो जाना है। मुस्लिम उम्मत से पहले आपका रिश्ता कट गया, पाकिस्तान से थोड़ा सा रिश्ता इसलिए है कि जो पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं बरतानिया में, यूरोप में या दीगर ममालिक में, रिश्ता तो उनका पाकिस्तान में मौजूद है। बाबर भट्ट साहब जिस तरह कह रहे थे हमारे अपने रिश्तेदार कादियानी मौजूद हैं, तो वो रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे जब वो पक्के इधर जर्मनी में मुकीम हो जाएंगे या बरतानिया में मुकीम हो जाएंगे। पीछे वाली वो जो सप्लाई लाइन है वो भी कट जाएगी, पैदा हो जाएंगे। लेकिन ये नफरत, ये सारा बाइकाट, ये आप खुद पैदा कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। जी ज़ियारसुल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आमर नज़ीर भाई, आपने बड़े ही दर्द दिल के साथ इन कादियानियत को ये आईना दिखाया है कि ये लोग कितना जुल्म अपनी ही ज़ात पर और अपने आप पर कर रहे हैं। किसी का इन्होंने क्या बिगाड़ना है? ये जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो मजहबी लिहाज से गलत काम हो, चाहे वो माशरती लिहाज से हों, ये अपना नुकसान कर रहे हैं। अपना ही जो असल चेहरा वो दुनिया के सामने शो करके
अपनी असलियत ज़ाहिर कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे चौधरी साहब की तरफ चलते हैं। ऐसे चौधरी साहब, अगला आपसे मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जब आप इस जमात का हिस्सा थे तो आपने मिर्ज़ा साहब की कितनी किताबों का मुताला किया हुआ था, और जमात की तरफ से क्या बाकायदा कोई तलकीन की जाती है मिर्ज़ा साहब की किताबों का मुताला करने की, या ऐसी कोई रिवायत नहीं? बात ये है सोशल मीडिया पे हमारे जो भाई हैं, पहले तो मैं आपको एक और बात बताऊं, ये भट्ट साहब को मैंने देखा, आमन नज़ीर साहब को देखा, तो यकीन करें ऐसे है जैसे वो भाई इकट्ठे हो जाते हैं। बड़ा खुशी हुई देख के, मुझे पता नहीं था कि इन्होंने आना है प्रोग्राम में। सोशल मीडिया पे जितने भी दोस्त हैं वो बड़े मुखलस तरीके से अहमद कल्ट में फंसे हुए लोगों को ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ें। मैं कहता हूं, आपने मेरे बारे में पूछा है कि आपको किस हद तक इल्म था और कहाँ किस हद तक इनको तालीम दी जाती है, यानी कि किस हद तक जो इनके मिर्ज़ा साहब की जो किताबें हैं उनके बारे में इनको अवेयरनेस दी जाती है, ये बेसिकली आपका सवाल है। इज दिस करेक्ट? जी हाँ बिल्कुल जी। हाँ, बात ये है कि मैं कहता हूँ सारी किताबें तो इनके मुरब्बियान ने भी नहीं पढ़ी। सारी से मुराद ये है, जो मैं समझता हूँ, जो बदयांत बंदा होता है उसकी कोशिश होती है कि हकीकत ना बताई जाए। बिल्कुल तो मेरा ये ख्याल है कि जामिया में के अंदर भी जो मिर्ज़ा साहब, अभी जो आमर नज़ीर साहब बात कर रहे थे, जो आपने औरतों की जो रिस्पेक्ट के बारे में, मोहम्मदी बेगम का जो रिश्ता मांगा, इस तरह लोग रिश्ता मांगते हैं। उसका रिश्ता मांग के कहा कि मेरा निकाह हो गया है। मैं किसी की बेटी के बारे में ये कहूँ कि मेरा निकाह उसके साथ हो गया है आसमान पे, फिर मैं ये कहूँ कि वो बेटी, उसका नाम लिख के कहूँ, नहीं किताबों में लिख के, कि वो मेरे पास खड़ी थी और बदन से नंगी थी, मुझे कहते हुए शर्म आती है, मिर्ज़ा कादियानी को लिखते हुए शर्म नहीं आई। ये मकाम है इन लजना का, इन ओहदेदारों के दिलों में। ये बानी मजहब ये सोच रखता है, बाकी करिंदे क्या सोच रखती हैं, पहली बात है। दूसरी ये कहती हैं कि ये नफरत की, मैंने वो बात, वो तलीम की बात, सॉरी मैं 1 मिनट आधा मिनट में इस बात पे लेना चाहता हूँ। कुछ कादियानी ये कहते हैं कि हम मुसलमानों से इसलिए अलहदा नमाज पढ़ते हैं, उनका जनाजा नहीं पढ़ते, क्योंकि कादियानियों ने, पहले हम इकट्ठे थे, लाइक मुसलमानों ने खुद नफरत फैलाई है। पहले हम इकट्ठे थे, जब मुसलमानों ने नफरत फैलाई तो उसके जवाब में कादियानियों ने इनका नमाज छोड़ दी, इनके साथ पढ़नी और जनाजे इनके पढ़ने और इनके साथ मिलना जुलना, शादियां करनी। ये भी दलील देते हैं। मुसलमानों ने आज भी आपसे प्यार करते हैं, आपने नफरत फैलाई है। कादियानी जो कल्ट है, अहमदिया कल्ट, इसने फैलाई है। उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ, यामन नज़ीर साहब इनसे पूछ लें, मिर्ज़ा साहब ने अपने बेटे का, जवान बेटे का, जो मिर्ज़ा साहब की जिंदगी में फौत हो गया, उसका जनाजा नहीं पड़ा। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद देखें, पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को, ये हजरत कायदे आजम कहते हैं, उसका जनाजा चौधरी जफरुल्लाह खान साहब ने नहीं पढ़ा। ये खुद नफरत क्रिएट करते हैं और आज भी करते हैं। मेरे इलाके के जो लोग हैं वो अपने, जिसको कहते हैं गिरेबान में मुंह डाल के देखें, सोचें। मेरे इलाके में सबसे ज्यादा बदमाश कादियानी थे और हैं। मैं नफरत के साथ बात नहीं करता, सबसे ज्यादा करप्ट ये थे। हर 2 नंबर काम इनका था, नशा बेचना, कत्ल करना, अगवा करना। मेरे गांव में एक बच्चे को अगवा किया गया, हमारे एरिया में कभी बच्चों का अगवा हमने नहीं सुना। लाहौर के एरिया में सुनते थे दूर दूर। मेरे इलाके के अहमदियों के बच्चों, एक बच्चे को अहमदी वक्फे नौ के बच्चों ने, जिनको ये कहते हैं कि हमने पेट में वक्फ किया, उन बच्चों ने अगवा किया, ठीक है, और पैसे लेके छोड़ा, और अपने आपस में भाई थे वो सारे। ये कहते हैं हम पीसफुल हैं।
इनका असल चेहरा दुनिया के सामने आए, इनको शर्म आए, ये मुंह गले के अंदर ये शर्म के साथ बाहर ना निकले। ये कहते हैं ऐसे चोरी मुखालफत करता है, शर्म करो कुछ। जिस तरह आपका चेहरा दुनिया के सामने नजर नहीं आया, मिर्जे की तलीम अब नजर आ गई है, आपको छोड़नी पड़नी है। मैंने छोड़ दी है, मैंने सारा सोचा, मैंने बहनों का सोचा, मैंने भाइयों का सोचा। मेरे कई बहन भाई मेरे इल्म में हैं, वो मुझे याद करके रोते भी हैं, मुझे हर उनके एक एक आंसू का ख्याल है। लेकिन मैं दुआ करता हूँ अपने खुदा से कि उन आंसुओं की कीमत पड़े और ये अहमदिया कल्ट के लोग समझ जाएं, और वो भी जो बहन भाई हैं वो भी अल्लाह करे खुश हो जाएं, और जो बाकी फंसे हुए वो भी निकल जाएं। जहाँ तक तलीम का तल्लक है, अहमदियों को सिर्फ कुछ नहीं पढ़ाया जाता। कोई हमारे गांव के अंदर चलें, हमारे इलाके का तो मैं नहीं कहता, मैं दावे से कहता हूँ हमारे गांव के अंदर एक भी हाफिज कुरान नहीं है अहमदिया कल्ट का बंदा, ना बीबी ना बच्ची। सही, ठीक है। जब कुरान का ये हाल है तो मिर्जा की इन्होंने वैसे तलीम छुपाई हुई है। कौन सी तलीम दी जाती है? दुर्र समीन के 2-4 शेर और ये बता देना कि जमात फैल गई है, फलां एरिया में फैल गई है, फलां एरिया में, और मिर्जा साहब जो है वो आने वाला मसीह है, हमने मान लिया है। बात ये है ज़िया रसूल साहब ये कहते थे, आप तो चूंकि इस कल्ट को नहीं जानते, ये कहते थे कि जो भी नबी आया और जिसने उसको माना, मानने वाले अच्छे रहे कि जिन्होंने इनकार किया अच्छे रहे। तो चूंकि ये नबी आया है, हमने मान लिया है, तो हम अच्छे हैं। ठीक है। मैं इनसे सवाल करता हूं, अब तो जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं नेरी च छापर उड़ के आउंड है ने, अब तो गली गली आपके नबी आ रहे हैं, मानो सभी को। जी जी बिल्कुल ऐसे। अभी ये ताहर नसीम को भी मानो, ये रात एक को पकड़ा है पाकिस्तान में, रात एक को पकड़ा है, कादियानी है वो भी। देखें, मैं कहता हूं, मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं कहता हूं ताहर नसीम को कि कत्ल का जिम्मेदार मिर्जा कादियानी के गलत अकायद हैं। क्या वजह है कि अहमदिया कल्ट के अंदर ही नबी और मुसले इस तरह आ रहे हैं? इतने तो मैं समझता हूँ मानने वाले नहीं होने जितने इनके अंदर मुसले और मेहदी और खुदा के प्यारे और नबी हो जाने हैं। 12 के करीब इसके पहले ग्रुप बन गए हैं इस कल्ट के। ये कहते थे 72 फिरकों में एक फिरका जनती होगा। मुझे ये बताएं, अगर आप अपने को जनती समझते हैं तो आपके कोई 12 हिस्से हैं। ये जो जब्बा साहब का फिरका है वो जनती है, नासिर सुल्तानी का जनती है, मिर्जा मसरूर का, किसका जनती है इसमें? आपके पास ना कोई दलील है ना कोई इल्म है। किताबें को बारे में मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे पता है इनकी हालत का, इन्होंने किताबें तो भी नहीं पढ़नी। कम अज कम जो ये लोग आपको बता रहे हैं, आपके हाथों में फोन है, इंटरनेट है, एक एक लाइन की तस्दीक कर लो। वो मुझे यहाँ पे ज़िया रसूल साहब एक बात याद आ गई वो एक मौलवी साहब बता रहे थे कि कोई बंदा उम्रा करने गया, तो उस मौलवी से उसने पूछा, किसी और फिरके का था मौलवी वहां पे, किसी और फिरके का था, तो उसको उसने पूछा कि यार उम्रा करने के लिए कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं? ठीक है। उसने कहा, उसने वो जो उम्रा की दुआएं होती हैं जो भी उसने बताया, उसने कहा ये तो यार मुझे आती नहीं। कहने लगा चलो कोई सूरतें 2-4 पढ़ लो जो आती हैं। कहता है वो भी नहीं आती। कहता है सूरत फातिहा, कहता है ये भी नहीं आती। उस बंदे ने, मौलवी साहब ने उस बंदे से को कहा कि चलो आप ऐसे करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यही पढ़ लो। वो कहने लगा मुझे सिर्फ बिस्मिल्लाह आती है, आगे जो आपने बोला ये भी नहीं आती। क्या बात है। तो वो बंदा कहने लगा कि फिर मैंने उसको कहा बिस्मिल्लाह भी नहीं आती। तो वो उठ के बेचारा परेशानी के अंदर चला गया और काबे का तवाफ कर रहा था और अपने फिरके को गालियां दे रहा था कि तोड़ा सत्यानाश होए तो हाँ मैंने बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ाई। ठीक है। मैं कहता हूँ पूरी किताबें इन्होंने नहीं पढ़नी, हमारे दिमागों का इन्होंने नुकसान करना है। वो एक एक लाइन ही तस्दीक कर लो, यही जाके पता कर लो कि मिर्जा सिर्फ मेहदी था कि नबी भी था। ये पता करो कि उसने ये क्लेम किया है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ही हूँ, बल्कि उससे बेहतर कायदियान में आया हूँ। 2 लाइनें जाके तस्दीक कर लो। ये पता कर लो कि मिर्जा के मानने वाले सहाबी हैं 313, नबी के बराबरी पे 313 खड़े कर दिए हैं।
यही जाके तस्दीक कर लो, वो एक एक लाइन तस्दीक कर लो। किताबें आपके नसीबों में नहीं है, जितना चंदा आप इससे मिर्जा। और अगर आप लोग इस तलीम को लेके गलियों में निकलोगे तो मुझे डर है कि आपको नुकसान होगा, और आपके नुकसान से ये जो कल्ट है ये खुश होगा। जितने आमदी, वो एक बहरिया टाउन में जो ये नया नबी आया है जी उसको मार दें, यहाँ लंदन में भंगड़ा ना ये डाले तब मुझे कहना। इस कल्ट को आपसे प्यार नहीं है, चंदे के नाम पे इन्होंने आपके घर लूट लिए हैं। अगर इस गलत तलीम को आप लेके दुनिया के सामने गए, आपका नुकसान हुआ, ये आपकी लाशें बेच के खा जाएंगे। खुदा के लिए अपना अकीदा बाहर ले लोगों को। मैं नहीं कहता कि आज़ादी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, पर 2-3 बार तस्दीक कर लो क्या करने जा रहे हो। बिल्कुल चोर साहब, मुझे आपकी बात से एक बात याद आ रही है। अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, कई बातें याद आएंगी। मैं अपने नादरीन के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। बात हो रही थी जी, हम ये इधर व्हाट्सएप पे एक मुरब्बी के साथ कुछ ऐसे ही बस डिबेट कह लें या मुकालमा हो रहा था। तो हमने कहा कि भाई आपके कल्ट पर तो पूरी दुनिया में पाबंदी है, हज करने की आपको इजाज़त नहीं है। उसने यही रोक लिया जी मुझे, कहता है 1 मिनट मौलवी साहब झूठ बोल रहे हो, हज करने की क्यों इजाज़त नहीं है, सारे अहमदी हज करने जाते हैं। मैं खुद कहता है 6 महीने हुए हैं कि पता नहीं 4 महीने हुए उम्रा करके आया हूँ, तो मैंने जनाब वहाँ पे तवाफ भी किया है, वहाँ पे ये भी किया, वहाँ पे वो भी किया। और फिर कहता है कि मैंने शैतान को फिर कंकरियाँ मारी। और इस अकल के पैदल इंसान को इतना नहीं पता था कि उम्रे में कौन सी कंकरियाँ मारी जाती हैं। तो कहता जी मैंने कंकरियाँ भी मारी। ये मतलब कि झूठ इन्होंने बोल देना होता है। अभी जो है कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे एक ऐसे लगा हुआ, झूठ बोल देते हैं बस। जी जी साहब, सॉरी, मैं नफरत के लिए नहीं, शैतान को ये कंकरियां क्यों मारते हैं? मेरा नहीं ख्याल शैतान ने इतना नुकसान किया है जितना मिर्जा कादियानी ने इनका किया हुआ है। तो शैतान को कंकरियां ये मारते हैं तो पता नहीं लालमी की वजह से मारते हैं। अगर ये सोचें, अगर ये मिर्जा की तलीम को खुद पढ़ें, खुदा की कसम ये अपने आप को कंकरियां मारें कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। मैं आपको कहता हूँ खुदा के लिए एक एक लाइन चेक कर लो। नहीं आपने 82-83 वो सारी नहीं आपने पढ़नी, और ना वो पढ़ने के काबिल है। यहाँ तक भी मैं आपको ये बताता हूँ, ये सारे लोग सुन रहे हैं, कई उनमें किताबें ऐसी हैं जिनके कुछ हवाले आप अपनी बेटियों बीवियों के सामने नहीं पढ़ सकते। वो नबी की तहरीर नहीं है, वो एक बदमाश की तहरीर भी नहीं हो सकती। बदमाश बंदे भी अपने घर में या बीवियों के सामने बैठ के कुछ शर्म करते हैं। तो जिसको नबी कहते हो उसकी कई हिस्से आप नहीं पढ़ सकते। मैं यहाँ पे अपना वक्त निकाल के नफरत फैलाने नहीं आया, तस्दीक कर लो। जो हवाले सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं वहां लिखा होता है ब्राही ने आम दिया, बुशरा तो हमामा, सीरतुल महदी, फलां पेज, फलां वर्क, फलां। वो खुदा के लिए एक एक लाइन चेक कर लो। वो जो बंदा बिस्मिल्लाह जिसको नहीं आती थी, एक एक लाइन चेक कर लो, बिल्कुल आपको होश आ जाएगी आप किधर खड़े हो। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम भी इनको यही कहते हैं कि मिर्जा साहब की किताबें पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि आप किस धोखे में फंसे हुए हैं। चौधरी साहब, अगला आपसे सवाल है, चूंकि अभी हमने प्रोग्राम जो है वो काम की तरफ लेके जाते हैं, कुछ सवालात हमारे रह गए। अगला सवाल है कादियानियों की तादाद के अतबार से, आप क्या एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पूरी दुनिया में कादियानियों की तादाद कितनी है? क्या बात है, क्या बात है। जैसे मैंने वो अदालती निज़ाम पे मैं बात की, क्या मैं जवाब दूं? ये कल्ट के समझ में पंजाबी आए, उर्दू आए, अरबी आए कि भंगड़ा उठ के डालूं कि क्या करूं, क्या जवाब दूं? ये तो किसी कादियानी से पूछें कि आप लोगों को कौन सी जुबान समझ आती है, तो मैं उसमें जवाब दूं। देखें, अल्लाह अकबर, देखें ये जो मिर्जा ताहिर अहमद है, इसने आई थिंक बट साहब आई थिंक 1992 में इसने 1993 में इसने ये तमाशा शुरू किया था बैतों का। ऐसे ही है ये बट साहब 1992 में था कि 3 में था? जी जी ऐसे ही है। आलमी बैत का जो सिलसिला शुरू किया था, करोड़ों में वो तादाद ले गए। 92 है। नहीं वो शुरू हुआ था, लेके बैठ गए थे कि ये तो दुनिया सारी में खा जाएंगे कुछ साल में। आई एम सॉरी,
جی جی یہ 1992 میں انہوں نے کچھ اس طرح کی باتوں کا ہر جلسے پہ اعلان کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ڈبل کرتے گئے اور آئی تھنک 2002 میں یا 3 میں ان کی جو 4 کروڑ بیت تھی نیچے گر گئی، ایک سال میں کہ 8 کروڑ تھی، 8 کروڑ یہ 8 کروڑ پہ لے کے گئے تھے. ہاں جی، ایک سال میں 8 کروڑ. وہ جی مجھے یاد ہے ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا دیکھو جس طرح آپ کی تعداد بڑھ رہی ہے بیتوں کی، مجھے لگتا ہے بیتوں کی تعداد زیادہ ہو جانی ہے، دنیا کی تعداد کم ہو جانی ہے. پھر ان کو پتہ نہیں شرم تو نہیں تھی، ان میں شرم ہو. دیکھیں اگر میں ایک بات کروں تو آج میں کوئی ایسی بات کروں پاکستان کے حوالے سے تو آپ انٹرنیٹ پہ کمنٹ میں ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ جو ان گدی نشینوں کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پیڈ، پتہ نہیں ان کو بھی کوئی خیال نہیں آتا یا وہ کس حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں بندے کو جتنے مرضی پیسے ملیں، ضمیر کی آواز تو پھر بھی بندے کو کچھ نہ کچھ شرم دلاتی ہے. کسی نے کہا کہ کیا کر رہے ہو تماشا. پھر وہ کروڑوں کی تعداد ایک دم لاکھوں میں آ گئی. اور مجھے لگتا ہے یہ جو موجودہ گدی نشین ہے اس کو شاید کروڑوں کا لفظ نہیں پڑھنا آتا، اگر نہیں پڑھنا آتا تو اربوں میں شروع کر لیں. اب یہ لاکھوں سے آگے نہیں گئے، 2 لاکھ. اب مجھے یہ بتائیں پچھلے سال 8 کروڑ ہو، اگلے سال 4 لاکھ ہو یا 3 لاکھ ہو، 8 کروڑ اور 4 لاکھ. اب اس پہ میں کیا کمنٹ کروں؟ مجھے بتاؤ. یہ احمدیہ کلٹ کے جو لوگ سنتے ہیں، میرا فون نمبر لے لو، مجھے بتاؤ کس زبان میں آپ کو سمجھاؤں. اور اتنا بڑا جھوٹا انسان مرزا طاہر، نہیں میری بات سنیں، بڑی معذرت چاہتا ہوں چوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کو علم تھا، علم ہونے کے باوجود اتنا جہل کہ اس کو اعلان کرتے ہوئے مسجد کے اندر بیٹھ کے اعلان کرتے ہوئے شرم ہی نہیں آئی. اور دنیا پوچھ رہی ہے. تھوڑی دیر سوری آپ کی باری ہے، آپ جاری رکھیں. میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کے روک رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ لوگ، میں نے پوچھا تھا کئی قادیانیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا کہ ایک رات میں اتنے قادیانیوں کو کیا ہو گیا. جب آپ نے ویب سائٹ پہ دیکھا کہ تعداد بہت نیچے گر گئی ہے تو ہم نے سمجھا کہ شاید آپ کے خلیفہ مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ سارے لوگ ساتھ مسلمان ہو گئے ہیں. تو مجھے جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ لکھتے جا رہے تھے، لوگوں کا قصور ہے، ہمارا قصور ہے، ہم شناختی کارڈ جلدی لکھتے تھے، نام لکھتے تھے، آگے کر دیتے تھے. کون لکھتا تھا؟ خدا کے بندو، خدا کے بندو، میں ایک کلین شیو آدمی جب کوئی والا دیتا ہوں تو 10 دفعہ چیک کرتا ہوں. میں کسی پوزیشن پہ نہیں. وہ تمہارا بندہ جو سب سے بڑے روحانی رتبے میں تھا وہ تصدیق کیے بغیر اللہ لان پہ لان کیے جا رہا تھا اور تم اس سے جھوٹ بول رہے تھے. اس کے دفاع میں یہ کہتے ہو کہ ہم نے غلط اس کو لکھ کے دیے. اور پھر آپ اندازہ کریں کہ جو سب سے بڑے روحانی آپ کے رتبے پہ، جس کو آپ مامون من اللہ کہتے ہیں، خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، وہ بغیر کسی تصدیق کے چھوڑے جا رہا تھا وہاں میں. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے. نہیں، یہ مذہب کی بنیاد بے حیائی اور جھوٹ پہ ہے. یہ 2 لفظ تھوڑے سے تہذیب کے خلاف ہیں، اس سے کم میں کیا یوز کروں. بے حیائی کا مطلب یہ ہے کہ حیادار بندے کو دلیل کے ساتھ بات کی جائے تو وہ سوری کر لیتا ہے. یہ نہیں کرتے. مرزا صاحب کو لوگوں نے دلائل کے ساتھ سمجھایا کہ آپ غلط کر رہے ہو، وہ باز نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور جھوٹ، آپ کے ان کے سارے خطبے دیکھیں، اس کے اندر جھوٹ نہ بولیں اتنی. اب پتہ نہیں یہ جھوٹ جو عام دنیا بولتی ہے اس کو یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں. بولنا جھوٹ ہے اور جھوٹ کے اوپر خطبہ دینا ہے. یہی کمال کر سکتے ہیں اور تو نہیں کر سکتا میرا خیال ہے. جی ضیاء الرسول صاحب جی، یہ دیکھیں ہم مذہب کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کوئی تماشا ڈسکس کر رہے ہیں. تماشا ان معنوں میں ان کی جو بھی بات کو شروع کریں خدا کی قسم شرم آتی ہے. کس کو ڈسکس کریں، کس کو نہ کریں، کیسے ان کو سمجھائیں. ہر چیز میں جھوٹ ہے، ہر چیز میں فریب ہے، ہر چیز میں دھوکہ ہے. کوئی بھی چیز ان میں کوئی سچائی تو سرے سے نظر ہی نہیں آتی نا. مرزا صاحب کو کھنگال لیں، اس میں کوئی سچائی نہیں آتی. ان کی جماعت کے نظام کو کھنگال میں، وہاں کوئی سچائی نظر نہیں آتی. پتہ نہیں یہ لوگ کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. چور صاحب اگلا آپ سے میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ
मुसलमानों के साथ तो ये बड़े पंगे करते हैं कादियानी। क्या ये दूसरे जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, यहूदी हो गए, मुल्हिदीन हो गए, बुद्ध मत हो गए, सिख हो गए, इनको भी जो है ये तबलीग करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या आउटपुट है उसकी? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या बात है। बात ये है ज़िया रसूल साहब, थोड़ा सा हम सीरियस भी बात कर लें, ये ना कहें कि पता नहीं सीरियस नहीं है। हमने दो काम किए। पहली बात यह है कि कोई ये जो कहते हैं ना अहमदिया कल्ट के बेचारे जो लोग हैं, इनको ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर हम पर पाबंदियां हैं, अगर पाबंदियां ना हो तो हमें अगर आज़ादी दी जाए कि हम अपने मजहब का प्रचार, मजहब तो नहीं है, इस फितने का प्रचार कर सकें, तो हम देखते देखते मुल्क को आमदी कर लें सारे। ठीक है, ये लॉजिक ये देते थे कि पाबंदियां हैं। हमारे एरिया में हमने बेशुमार या अहमदिया कल्ट के लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ये जानते हैं, ये गवाह है उस बात की। हमने बेशुमार, हमारे दो ही टारगेट थे, चंदा दें और दावत अल्लाह करें। अब मैं पहले दावत अल्लाह की जो बरकत है वो आपको बता देता हूँ, वो क्या है, उसका क्या फल मिला है हमें। हमने कई जलसे किए, कई दफा हमने देगें पका पका लोगों को दी। हमसे मुराद ये है कि हमने मेरे इलाके के लोगों के खून पसीने की कमाई से देगें पका के दी। अहमदिया कल्ट ने और इस जमात ने कुछ नहीं दिया, हमने अपने पैसों से दी। ये ना ये सोचें कि इन्होंने दिए। ठीक है, हमने लोगों को मस्जिदों में बुलाया, लोग प्यार करते हैं, लोग हमारी मस्जिद में आते हैं। ये अहमदिया कल्ट के लोग नहीं जाते दूसरी मुसलमानों की मस्जिदों में, वो फिर भी आ जाते हैं, इनके जलसों में भी आ जाते हैं, ये गवाह इस बात के। ठीक है, रिजल्ट क्या है, मेरे इलाके में मैं इतनी जिंदगी गुजार के आया हूं, एक भी बंदा ये मुझे बताएं कि फलां बंदे ने बैत की हो, नो। मेरे इलाके में लोग लांत डाल के इसको छोड़ के चले गए, बेशुमार लोग। ठीक है, ये है इनकी दावत अल्लाह। उसमें हम, इन्होंने सिर्फ मेरे इलाके के चंद लोगों को टारगेट किया है, ना ये ईसाइयों को करते हैं, ना ये सिखों को करते हैं, इंडिया का हाल देख लें, ना हिंदुओं को करते हैं। कादियान से अभी रिसेंटली मुझे एक कॉल आई एक दोस्त की, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार कादियान के उस मुल्क में कितने लोग हैं जो अहमदी हैं? वो कहता है इस पीर का जलसा जो होता है, अगर गुजरांवाला, शेखुपुरा, हाफसाबाद से ये मरीद ना आए, इसका जलसा नहीं हो सकता। ये जो आपने पूछा है कि बुद्ध मत को क्या करते हैं, फलां को क्या करते हैं, इन्होंने मुसलमानों के कुछ लोग घेर के उसके ऊपर ऐसा जाल बिछाया है सजाओं का। ये जो अहमदिया कल्ट के अंदर फंसे हुए हैं, ये चंदा देते हैं कि हम इस्लाम को फरोग दे रहे हैं। जो चंदा लेते हैं वो दिन रात ये मशवरे करते हैं कि इस जो छोटी सी कम्युनिटी हमारे जाल में फंस गई है, इनको कीप कैसे करना है। ठीक है, तो ये कीप करने के लिए इन्होंने सजाएं लगाई हुई है। किसी को इन्होंने तबलीग, अच्छा उस तबलीग का नतीजा ये है मेरे इलाके में कोई आमदी नहीं है, मसलन क्यों कोई नया नहीं हुआ। अब आगे इधर मेरी इनके बाद मुरब्बियान से बहस हुई। मैंने कहा मैंने कनाडा में सारा कनाडा घूमा है, ये जो कनाडा में बसने वाले लोग हैं, मैं जो पाकिस्तान में बसने वाले हैं, जो जर्मनी में बसने वाले हैं, उनको मैं कहता हूं कि आप जो तसब की, जो अतात की ऐनक जो ये कल्ट ने आपकी आंखों पे डाली हुई है, उसको उतार के मोटी ऐनक लगा लें नजर वाली। किसी जलसे की वीडियो निकाल के देख लें, उसमें बंदे हैं, लंदन का देख लें, कनाडा का देख लें, जर्मनी का, वही 4 बंदे। कौन से? शेखुपुरा, गुजरांवाला, हाफसाबाद। मोहम्मद रफीक, शेखुपुरा, मोहम्मद सतार, गुजरांवाला, मोहम्मद नवीद, ये। अच्छा, उसके बाद सही, कनाडा के अंदर ना कोई गोरा, ना कोई काला, ना कोई पीला, ना कोई नीला, इनको कोई मुंह नहीं लगाता। अपने जलसे में बताएं। एक यहाँ पे मसलन अब ये वजीरों के साथ फोटो बनाते हैं, दूसरों के साथ बना के दिखाते हैं कि पता नहीं मिस्टर ट्रूडो साहब पता नहीं इनको बहुत वेलकम करते हैं। मिस्टर ट्रूडो साहब तो सिखों के गुरुद्वारे में भी जाते हैं,
हिंदुओं के टेंपल में भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सबको आज़ादी दी है। अब आ जाइए इनकी तलीम पे। इनको यहाँ मस्जिदें बनाने की इजाज़त है, तबलीग करने की इजाज़त है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा वहाँ तो आप कहते थे हमें इजाज़त नहीं है, हमारे पास इतनी पावरफुल तलीम है इस्लाम की, हम तो देखते देखते दुनिया को बदल दें, तो बदलो कनाडा के अंदर। मुझे तो एक बंदा भी नजर नहीं आया, और यहाँ भी लोग छोड़ रहे हैं। मजे की बात है, इस कल्ट के लोग इसको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ बड़ा सिंपल हल है। जब ये जलसा इनका होता है, मोटी ऐनक लगा लें, दूरबीन लगा के देख लें, कोई आपको नजर नहीं आएगा सियालकोट, गुजरांवाला, हाफसाबाद के अलावा। यही 4 बंदे हैं जिनकी गर्दन को जकड़ने के लिए मिर्जा साहब ने अखराज, शादियों पे पाबंदी, उनके सोशल बाइकाट, अगर कोई छोड़ता है तो उसको बच्चों को दूर कर देना, बहन भाइयों को दूर कर देना, इस तरह का जुल्म डाल डाल कर उनको कैद किया हुआ है। और वो कभी इधर आके नारे मारने शुरू कर देते हैं, कभी उधर। ठीक है, उसके बाद चंदे की बरकत देख लें। मैं ये सवाल रिलेटेड नहीं है, आपका सवाल तो मुकम्मल हो गया है। चंदे की बरकत ये है कि वो ये इनकी कारें देख लें, इनके घर देख लें, इनका पनामा लीक तक नाम आ गया है। AK शेख साहब ने, अकबर चौधरी साहब ने पनामा लीक के पेपर, सबसे बड़ा जो इल्जाम किसी पे लगाया जाता है आज के दौर में वो पनामा का ही है। क्यों ज़िया रसूल साहब? उनके अंदर इनके नाम आ गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चंदे की बरकत तो नजर आ रही है। 4-5 कंपनियां जो है हाँ, उनकी फैमिली के नाम पे हैं, मिर्जा मसरूर की फैमिली के नाम पे। हाँ, चंदे के नाम की तो बरकत मुझे मसलन वो दावतुल्लाह की बरकत तो नजर नहीं आई। चंदे की बरकत ये है कि हमारे खून पसीने, मेरे इलाके के लोगों का खून पसीने की कमाई को उन्होंने छीन ली है। यहाँ बहुत सी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके सवालों का ही जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम तो बहुत लंबा हो जाएगा। जी, कोई अगला सवाल है तो? जी साहब, अगला सवाल मेरा आपसे है, बिल्कुल है सवाल कि देखें, जैसा कि इस्लाम की तालीम भी है पर्दे की, पर्दा हर के लिए, किसी के लिए ज़रूरी है, नामहरम से ख़वातीन को भी ज़रूरी है, और मर्द हजरात भी जो है वो ख़वातीन को नहीं देख सकते इस तरह खुले सयाम, और उनके साथ मेल मिलाप, मेल जोल, उठना बैठना और इतना क्लोज होना उनके साथ, इसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। मिर्ज़ा साहब भी यही करते थे, सारे सर रात वो गैर महरम औरतों से टांगे दबवाते थे। खैर, ये तो है उनका अमल। मिर्ज़ा साहब खुद कहते हैं कि इस्लाम ने जो है वो गैर महरम की तरफ निगाह करने से, देखने से भी मना फरमाया है। यहाँ तक मिर्ज़ा साहब ने लिखा है, मेरे पास हवाला मौजूद है, कि इस्लाम मना करता है कि आप जो है वो अच्छी निगाह से, पाकीज़ा निगाह से भी गैर महरम की तरफ नहीं देख सकते, इसकी भी मुमानियत है इस्लाम में। अब ये सच्चे इस्लाम के ठेकेदार जो बनते हैं कि हमारा ही सच्चा इस्लाम है, हम ही सच्चे इस्लाम को फॉलोवर हैं। मिर्ज़ा साहब वो जो दिन उठ गया था, आसमान पे चला गया था, उसको वापस लेके आए हैं। ये कौन सा इस्लाम वापस लेके आए हैं कि अब मेरा सवाल समझ जाएंगे कि ये इनके खुलफाज रात जो हैं, ये सारा दिन ख़वातीन के जुर्मट में रहते हैं। इनकी लजनाएं बगैर पर्दे के उसके सामने बैठी होती हैं और वो दर्स दे रहे हैं। दर्स उस बेचारे ने क्या देना, उसको खुद रोज़ाना एक दर्स की ज़रूरत होती है, बल्कि एक नहीं। वो जिस तरह वो बीमार आदमी को डॉक्टर कहते हैं ना, 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। मिर्ज़ा मसरूर साहब को खुद 2-2 दर्स की 3 टाइम ज़रूरत है, तो इन्होंने क्या आगे दर्स देना। बहरहाल वो लेके बैठे होते हैं लजनात को। फिर जो दूसरी नॉन मुस्लिम ख़वातीन आती हैं, मुझे याद है एक हवाला मेरे पास मौजूद है। मिर्ज़ा साहब ने किसी को कहा था कि एक अंग्रेज़ औरत है, तो वो उसने किसी मुरीद से हाथ मिलाना चाहा, तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि उसको मना कर देना था कि हमारे इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। इधर क्या करते हैं खलीफा साहब, नंग धड़ंगी जो ख़वातीन हैं, क्या ये निज़ाम है, ये सिस्टम है इनका? ये उनको कह नहीं सकते कि भाई आपने हमारे जो गुरुद्वारा है उसमें अगर आपने आना है तो आप भाई अपने लिबास पर जो है वो लिबास को दुरुस्त करके आएँ। जैसे पाकिस्तान में है कि मसाजिद में अगर ये जाएँ, बैरून मुल्क से जो ख़वातीन आती हैं, बाकायदा वहाँ पे जो इंतज़ामिया होती है उनको गाइड करती है कि अगर आपने मस्जिद में इंटर होना है तो कम से कम आप अपना लिबास दुरुस्त रखेंगे, क्योंकि ये हमारी जो है वो मुकद्दस जगह, इबादत खाना है हमारा। अच्छा, ये इन्होंने ये तो क्या करना है, ये खलीफा साहब खुद बैठे होते हैं, पास है जुड़ जुड़ के उसके, और पास जुड़ जुड़ के खड़े होकर तस्वीरें बनाई होती हैं। लजनात जो है पर्दा नहीं करती। ये क्या शरीयत कहती है इनकी इस बारे में? क्या कोई शरीयत इनकी में पाबंदी नहीं है? और ये कौन सा इस्लाम है जिसको फॉलो करके ये सारे काम इनके खलीफा साहब कर रहे हैं? रिपब्लिक ने जो करना है वो तो फिर हम खुद समझ सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या मजबूरी है इनकी ऐसा करने की? बात ये है ज़िया रसूल साहब
देखें, एक लिहाज से तो पर्दे के सिलसिले में इनके अंदर बेहतरी आई है। अब लोग जो मुसलमान बहनें और बेटियां और ये अहमदिया कल्ट के भी बहनें बेटियां जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हो सकता है उनके दिल में ये ख्याल आए कि देखें ये मजहबी बातें कर रहे हैं और बाज़ औक़ात इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मजबूरी ये है, मैं उन सभी बहनों बेटियों से कहता हूँ, मजबूरी ये है, ये बातें मिर्ज़ा साहब की किताबों में लिखी हुई हैं, तो जवाब ना भी दें तो क्या करें। बेहतरी में इन मानों में आई है ज़िया रसूल साहब कि मिर्ज़ा साहब के दौर में तो उनके अपने कमरे में औरतें नंगी नहा लेती थी उनके सामने बैठ के। अब अहमदिया कल्ट के जो लोग सुनेंगे वो कहेंगे अस्तगफार अस्तगफार, चौधरी साहब पता नहीं क्या बोल रहा है। मैं कहता हूँ ये मिर्ज़ा साहब की किताब के अंदर लिखा हुआ है, मिर्ज़ा साहब के अपने बेटों ने ये किताब लिखी हुई है। ज़िया रसूल साहब, ये बहरहाल ये अहमदिया जो इनका लिटरेचर है उसके अंदर लिखा हुआ है, ये मिर्ज़ा साहब की है या उसके बेटे बशीर अहमद साहब की है, ये कन्फर्म की जा सकती है। इनके लिटरेचर के अंदर है कि मिर्ज़ा साहब के कमरे में बैठ के, सीरतुल महदी में लिखा हुआ, सीरतुल महदी में लिखा हुआ है कि उसके कमरे में नंगी औरत बैठ के उसके सामने नहा रही है। ठीक है बाबा, बिल्कुल तो ये तो आपको खुशी, ये तो ज़िया रसूल साहब आपको खुशी होनी चाहिए थोड़ा सा सोच के कि बेहतरी आई है पर्दे में। चलो अब कपड़े पहन के जा रही हैं, क्या 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 बेहतरी आई है, मेरा ख्याल है शर्म आनी चाहिए। देखें, एक और मैं हदीस आपको बताऊं जो मैंने सुनी है वो मैं आपसे शेयर करूं। कहते हैं कि एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आया और वो नबीना था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज को हुक्म दिया, आपने फरमाया कि आप पर्दा फरमाएं। तो किसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से किसी ने कहा कि हजूर वो तो नबीना है। आपने फरमाया आप तो नबीना नहीं है, आप तो देख सकती हैं। बिल्कुल ऐसे, पर्दा लाजम है, बिल्कुल ऐसे। अब खुदा के रसूल की तो ये सुन्नत है। अब ये हो सकता है ये असल में औरतें ना हो जो लजना सामने नजर आ रही हैं, हो सकता है इस तारे के रंग में कुछ चीजें फिरती आपको नजर आए। चेक कर लें, इनसे पूछें कि ये असल औरतें हैं कि इस तारे के रंग में कोई लोग फिर रहे हैं। प्लास्टिक की भी हो सकती है, चाइना ने प्लास्टिक की भी लड़कियां जो आजाद की हैं, मे भी वो हों, हमारी गलतफहमी हो। आई एम सॉरी, अगला सवाल आई थिंक ये ठीक है। भट्ट साहब, ये बेहतरी आई है पर्दे में। शर्म आती है कसम से बयान करते हुए, शर्म आती है बयान करते हुए उस फिरके को, उस फितने को जिसमें मैंने लंबा अरसा अपनी जिंदगी का बर्बाद कर दिया। चौधरी साहब, अगला सवाल आपको ये है कि एक बहुत ज्यादा रिलीजियस हवाले से इनका जो है वो एक जोर होता है एक बात पे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाता वफात पे बात करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मैं सिर्फ जमात के लोगों की मेंटालिटी चेक करने के लिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, कोई डिबेट करना इस पे मकसद नहीं है, कि क्या आपको लगता है कि इनकी जमात में आप भी रहे हैं और बाकी भी लोग हैं, मरबियान तो चलो वो जो हाई लेवल के ब्रेन वाश्ड होते हैं ना, बाकी जो पब्लिक है आम, क्या वो ये किसी से पूछने के, चले खलीफा साहब से तो जरूरत नहीं करते और इनकी जो बड़ी इंतजामिया से जो मरबियान जो हैं इनसे ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं करते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फौत होने से या उनके ज़िंदा रहने से मिर्ज़ा साहब की सच्चाई का क्या ताल्लुक है? अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हों तो मिर्ज़ा साहब कैसे नबी बन जाते हैं, कैसे मसीह इब्ने मरियम बन जाएंगे, कैसे जनाब वो उनकी सच्चाई की दलील है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फौत हो जाना? ये तो लॉजिक से ही हट के बात है। उसके बावजूद पूरी कादियानी जमात का जोर इसी पे होता है। तो क्या इन लोगों में इतनी सोच नहीं है कि ये क्वेश्चन उठाएं कम से कम अपने मुरब्बियों से भी कि ये इसका लिंक क्या है, पहले लिंक तो समझा दें, बहस बाद में कीजिए। इसमें ज़िया रसूल साहब बहुत अच्छा सवाल है। बात असल में ये है हम तो समझाना चाहते हैं, ये समझना नहीं चाहते। ठीक है, मिर्जा साहब की 68 या 69 ईयर एज है। 52 साल तक मिर्जा साहब इस अकीदे पे कायम रहे कि हजरत वही अकीदा जो तमाम मुसलमानों का है, और मिर्जा साहब इस पे कायम रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे हैं।
मिर्जा साहब 52 साल तक इस अकीदे पे कायम रहे कि आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना, आप आखिरी नबी हैं। मिर्जा साहब इस बात पे कायम रहे कि अगर कोई नबूवत का दावा करेगा तो वो दायरा इस्लाम से खारिज गिना जाएगा। मिर्जा साहब ने यहां तक भी कहा कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा नहीं मानता वो शिर्क अजीम का मुर्तकिब होता है। तो बात यह है कि खुद इन्होंने कहा कि वो शिरक करता है जो उनको जिंदा नहीं मानता। ये मिर्जा साहब की तहरीर है, उसके लफ्ज अलफ बे इधर उधर हो सकते हैं, उसका मफहूम यही है। ठीक है, आगे आ जाएं। अब जब मिर्जा साहब ने ये क्लेम कर दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और मैं अल्लाह का नबी हूं, तो नबी तो गुनाहों से पाक होता है। मिर्जा साहब की अपनी तहरीर के मुताबिक क्या वो 52 साल तक शिरक करते रहे और क्या मुशरक नबी बन सकता है? इसका सवाल का जवाब नहीं है, बस इधर जो है तवीलें हैं 2-3 वो आपके सामने पेश की जाएंगी, जवाब नहीं। तवीलें तो मसलन तवील एक 52 साल तक हम तो कहते हैं, ये देखें इमरान खान की तकरीर है, हम उस पे आज दुनिया बहस करती है, महजब दुनिया, यार इसने फलां जगह ये कहा, फलां जगह ये कहा, ये जो तजाद है ये क्यों है? नबी की बातों में, लिखी हुई बातों में इतना तजाद है और ये चुप करके चंदा देते हैं। तजाद उस बंदे की बातों में होता है जो पागल मजनू हो उस और झूठा हो, उस बंदे की बातों में तजाद होता है। ये सब खुद ये मेरा ख्याल है सवाल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इनका जो बानिए जो फितना था, बानिए मजहब तो नहीं है, ये जो फितना जो कामदिया कल्ट का जो फितना है, इसका जो बानी था उसका ये अकीदा लिखा हुआ है। आपने किताबें नहीं पढ़नी, एक लाइन पूछ लो किसी मुरब्बी से, किसी मौलम से। इनको ज़िया साहब हंस के रिक्वेस्ट करूं कि रो के रिक्वेस्ट करूं, आई डोंट नो। जाओ एक लाइन पूछ लो। 52 साल तक मिर्जा साहब क्या इस अकीदे पे कायम नहीं थे? क्या उन्होंने ये नहीं लिखा कि जो ईसा अलैहिस्सलाम को फौत मानेगा वो शिर्क अजीम का मुर्तकिब होगा? 52 साल तक आपका नबी, जिसको आप मिर्जा कादियानी कहते हो, 52 साल तक मुशरिक रहा।